So thank you so much everyone for joining this webinar. Assalamu alaikum everyone. Let me share the slides, please. Bismillahirrahmanirrahim. Start from name of Allah Tabarak wa Ta'ala, the most merciful and beneficent. Meeram Shahzadi, Assistant Manager at CBS Center for Industry and Building Energy Audit. From background, I'm an electrical engineer with specialization in energy management and sustainability, and currently pursuing my PhD in energy system modeling. So today our topic of presentation is Energy Expert, a promising career for women energy expert. So that is organized by SMEDA, Small Medium Enterprises. So the background is already explained by head of the department. So now today the topic table of contents we will discuss why women in energy sector, like क्यों जरूरत है, should I go in Urdu or English or in both ways, whatever is comfortable for everyone, so I will go in that. So just type in chat box, so I will go in that flow. So why women in energy sector, कि हमें जरूरत क्यों है वुमेन्स की एनर्जी सेक्टर में, then areas of opportunities, कहाँ पे आपकी job opportunities हैं, कहाँ पे आपको focus करना चाहिए for the career growth. So then अगर आप energy sector को opt करते हैं, then what parameter you should know like to grow in this sector. So the first and foremost thing you should know, load optimization, so what it is and then why it's important. Then the second thing, the optimization of load we see in different sector, residential जिसमें आपका household cover होता है, industry है जिसमें industries, manufacturing industries आ जाती हैं, commercial sectors में आपके बैंक, shops वगैरह आ जाते हैं. So इन सारे sectors में load optimization क्यों जरूरी है? In order to minimize your energy consumption, जो ultimately आपके energy bill को कम करती है. So what are the areas of energy savings in this sector we will discuss in this presentation. हम both electrical and thermal side को cover करेंगे, not completely, but at least we will touch some of the areas of electrical and thermal system. And इस audit में हम equipment को ज़्यादा detail में discuss नहीं करेंगे इस presentation में. We will discuss the analysis. अगर आप equipment को use करते हुए data collect करते हैं, तो उसके बाद आप being an auditor उसके analysis कैसे करेंगे, ठीक है? So थोड़ा सा आपको एक broader perspective में idea देना है कि कोई भी energy audit कैसे conduct होता है. So being a woman, अगर आप किसी भी सिस्टम को फिर एनालाइज करेंगे तो कैसे एनालाइज करेंगे एंड कैसे आप डिफरेंट एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज या मैं कहूँगी कि एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे. So why women in energy sector, that is like really important area to discuss. अगर देखा जाए तो फीमेल पार्टिसिपेशन नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द ग्लोब जो है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है? सो अगर हम यहाँ पे साउथ एशिया को देखें तो हमारे पास अगर ऑनरशिप की मैं बात करूं तो ओनली 17% अराउंड द ग्लोब में बात कर रही हूँ. अगर टॉप मैनेजमेंट की मैं बात करूं ओनली 6%, बट द फीमेल्स विद अ परमानेंट जॉब फुल टाइम ओनली 2%. लाइक व्हाई ओनली 2%? लाइक फीमेल पार्टिसिपेशन, इसकी डिफरेंट वजह हो सकती है, ठीक है? वी अंडरस्टैंड कुछ सोशल इश्यूज हो सकते हैं जो कि हम कह सकते हैं सोशल बैरियर्स होते हैं, ठीक है? इन आवर सोसाइटी द फीमेल्स आर नॉट सपोज्ड टू गो ऑन द साइड, ठीक है? ये डायलेमा अब तक था. अब रिगार्डिंग जैसे SMEDA भी एनर्जी अवेयरनेस सेमिनार्स कंडक्ट करती है, डिफरेंट गवर्नमेंट भी इस लेवल पे काफी फीमेल्स को एनकरेज करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्ट करती है ताकि फीमेल्स को एनकरेज किया जाए, नॉट ओनली टू कम इनटू द एनर्जी सेक्टर एज वेल एज टू ब्रिंग अप विद सम लाइक बिजनेस मॉडल्स एंड बिजनेस आइडियाज एज वेल. कि फीमेल्स को सिर्फ डॉक्टर और टीचिंग की हद तक नहीं रहना चाहिए, उसे इस सेक्टर में भी आके आगे लीड लेना चाहिए. सो you can see the measures over here कि female participation या female leadership energy sector में बहुत कम है. So working women in पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो almost 50% जो है population females की है, बल्कि more than 50% I would say. But 30 अगर मैं rural and urban की बात करूँ तो urban में 18% female population है, but still globe की जब मैं बात करती हूँ तो only 2% females are working full-time jobs. So like here's again we will say कि गवर्नमेंट जितने भी स्टेप्स लेती है, जैसे 2011 में 24% थी विद द जीडीपी ग्रोथ, जो ग्रोथ रेट था उनका 6.5%, बट अगेन इट फॉल डाउन टू 21%. और अगर मैं अभी 2020 की बात करूं तो इट विल बी ड्रॉप डाउन मोर ड्यू टू कोविड सिनेरियोज एंड एक्स्ट्रा. सो ठीक है, बैरियर्स आर देयर बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल. So let's identify different areas of opportunity and growth in the energy sector for females.
So females, being a female, you are, as I already discussed, that you are not supposed to be a teacher and doctor only. You can come into the energy sector as well, being an energy engineer, being an energy auditor as well. You can just go for the CM exam, certified energy manager. And if you can pass that exam, then you would be at the middle. If not the top management, then at least you will be working at the middle management. So you can jump into the middle management. It's just only you should know how to do the calculation analysis of the energy auditing. So from that perspective, we will be having a bit view of the energy auditing today. So एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन में आप क्या आ जाते हैं, आपकी यही एनर्जी ऑडिटिंग ही आ जाती है कि आप कैसे सिस्टम को ऑप्टिमाइज करते हैं और कम एनर्जी पे ज्यादा आउटपुट लेते हैं। नॉर्मली ऑप्टिमाइज आप अपने रेजिडेंशियल सेक्टर को भी कर सकते हैं, बट जो ज्यादा आपकी सेविंग्स होती हैं रेजिडेंशियल के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन मिलियंस होती हैं, ठीक है। तो आप अगर रेजिडेंशियल सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी को एज वेल एज इंडस्ट्रियल में अप्लाई करते हैं तो आपकी सेविंग्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। So energy efficiency conservation का one part like to work as a energy auditor, उसमें फिर आपके आगे system implementation proper आप establish करते हो, जिसे हम कहते हैं energy management system। Worldwide different standards हैं, जैसे कि ISO 50001 specifically energy management system किसी भी organization के लिए design करने के लिए, so depend upon the scope of the organization, either वो academia है, industry है, commercial sector है, you can design a separate system for your organization, right? तो आप जब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन में आते हैं तो ना सिर्फ आप सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना सीखते हैं, एज वेल एज आप उसके लिए प्रॉपर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन करते हैं ताकि आप फ्यूचर फोरकास्टिंग ना सिर्फ कर सकें बल्कि एग्जिस्टिंग बेसलाइन डेवलप करके आने वाले सालों की एनर्जी कंजम्पशन को कम कर सकें। In order to make the lower the energy consumption, bill will be reduced, that will be ultimately the profit into your pocket. सेकेंड फील्ड जो है वो रिन्यूएबल, जिसमें मोस्टली पाकिस्तान में अगर काम हो रहा है तो वो सोलर में हो रहा है, ठीक है। फीमेल्स आर कमिंग इनटू द सोलर सेक्टर, नॉट एनर्जी एफिशिएंसी, जस्ट बिकॉज आई ऑडिटेड मोर देन 15 इंडस्ट्रीज अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब, कराची, मनीर इंडस्ट्रियल स्टेट, बलूचिस्तान हब रीजन, even KPK, Peshawar Industrial Estate of Hyderabad. But I never see a single female working in the engineering department. There was female working in the administration department, but कोई भी फीमेल इंजीनियर साइट पे या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नहीं थी। मतलब इन 4 रीजन्स को मैंने कवर किया, इन 4 रीजन में मुझे किसी एक इंडस्ट्री में भी फीमेल नजर नहीं आई। मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कॉम्पिटेंसी नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूंगी आपके अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं। देयर आर लाइक गवर्नमेंट इज स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अमंग द फीमेल्स एंड अमंग द whole society, but still like female participation or can say female leadership nahi hai is sector mein. So there is a lack of female leadership in the sector, so female should come forward and take the leadership. Like आप लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर आप साइट पे काम करते हो, ठीक है, वर्किंग ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, और इवन तो अगर मैं रिन्यूएबल की बात करूंगी, फीमेल रिन्यूएबल में आती है, दे आर मोर और लेस इंटरेस्टेड टू वर्क इन ऑफिस, राइट। वो सोलर सिस्टम के डिजाइन पैरामीटर्स को डिजाइन करने में इंटरेस्टेड होती है, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो ऑन टू द साइट। बट वन थिंग आई वांट टू क्लियर हियर, अगर कोई भी फीमेल जाती है किसी सोलर साइट पे जाती है, ठीक है, सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन पे, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, नो वन विल हरास यू, एवरीथिंग वुड बी सेफ। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको आगे से फीमेल को तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। तो कीप इन माइंड इफ यू केम इनटू द एनर्जी सेक्टर, यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय ईच एंड एवरीवन, ठीक है। आप अगर कोई भी स्किल सेट लेके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ऑडिट करते हैं उनका, तो दे विल रिस्पेक्ट यू एंड यू विल नॉट बी इवन अ बिट अनकंफर्टेबल। सो इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करें कि आप अगर साइट पे जाते हैं, ठीक है, इन तीनों में से किसी भी सेक्टर में, चाहे मैं अगर क्लाइमेट चेंज की बात करूं, अभी वर्ल्ड बैंक एक प्रोजेक्ट अपलोड हुआ था, डिकार्बनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर ऑल ओवर द पाकिस्तान। आई एम आल्सो वर्किंग इन दैट प्रोजेक्ट, बट देयर आर फीमेल पार्टिसिपेशन नीडेड इन ऑल ऑफ दीज 3 sectors and there is no female. So I would say that at the end of this presentation, some of the females should decide their career to come into this sector. There are a lot of opportunities in this sector for you waiting. Just come and join us and like excel your professional career in this field. So that was what we earlier discussed, that where are the areas of opportunity, or I can say what are the areas of opportunities for females. So all these areas are waiting for the females.
just come and explore these areas. So now let's discuss what is energy optimization and why it is important. As I already discussed that energy optimization के बेसिक मकसद क्या है कि आप अपने कंफर्ट जोन को सेटिस्फाई रखते हुए या कैन से कि एक सुटेबल लेवल तक, स्टेबल लेवल तक रखते हुए एनर्जी कंजम्पशन को आप लोग करते हैं, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कि आपने अपने कंफर्ट लेवल को नहीं वो करना होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइटिंग सिस्टम की बात करूं तो लाइटिंग सिस्टम में if anyone has a question, just can raise a hand. I can answer them in the middle of the presentation. That will be also okay. So अगर for example लाइटिंग सिस्टम की मैं बात करूं, आपके incandescent बल्ब, we will discuss in detail the lighting whole system. बट आपके घर में अगर incandescent बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, उसकी लाइट है, कुछ ल्यूमिनस आते हैं जो आपके रीडिंग एंड राइटिंग के लिए नेसेसरी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको रिप्लेस करेंगे तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करेंगे जो कि कम बिजली खर्च करे और आपको उतने या उससे ज्यादा मिलते हैं, आपका कंफर्ट लेवल डिस्टर्ब नहीं होगा। अल्टीमेटली आपकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम होगी, बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको रेट्रोफिटिंग करनी पड़ेगी, इनिशियल कुछ कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी। सो in that regard, some energy efficient measures are required to go for the optimization of system. So as a result, you will get reduction in your energy bills. So again, women in energy sector की मैं अगर दोबारा बात करूँ तो 48% ऑफ द लेबर फोर्स अगर है, ठीक है, और जिसमें से 22% जो है ट्रेडिशनली एनर्जी सेक्टर में है। लेकिन अगर मैं ये ग्लोब की बात हो रही है, नॉट ओनली पाकिस्तान। सो फॉर टॉप मैनेजमेंट लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो फीमेल्स are really few. One of few of the organization are working like a wire woman that's specifically for the women engineer. So अगर आप इस तरह से बात करें, so just only why we have a woman in energy sector. बाकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है, या स्पेसिफिकली वुमेन लीडरशिप एक टॉप लेवल पे क्यों नहीं है, ठीक है। So there are barriers, as I already discussed, social barriers जो सबसे टॉप पे होते हैं, लेकिन still you can overcome those barriers and come into this sector to excel. So the cleaner energy transition will require innovative solutions, business models. Who will develop those models? The female can develop the best model, but just only they have to come into this field and play. So let's discuss how to optimize the load of residential, industrial and commercial sector. So अगर load optimization की मैं बात करूँ तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सेक्टर का लोड कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है। अगर आप अपने घर में देखें तो आपके घर में 3 पैरामीटर्स आपको नजर आएंगे, लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग एंड हीटिंग। हीटिंग में गैस हीटर्स होते हैं या गैस गीजर्स जो आपके हैं, ठीक है। सो इंडस्ट्री सेक्टर में जब आप देखते हैं तो उसमें भी अगेन लाइटिंग सिस्टम होता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम जिसमें एसी आ जाता है या विंडो एसी या स्प्लिट एसी आ जाते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम को जब आप मॉनिटर करते हैं तो उसमें आपके पास कंप्रेसर्स एंड पंप्स आ जाते हैं। एयर कंप्रेसर को मैंने अलग से, दैट आल्सो कम इनटू द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम, बट स्टिल इट इज अ फोर्थ यूटिलिटी। इसमें सेविंग्स इतनी ज्यादा होती है कि हम इसको बिल्कुल एक अलग यूटिलिटी के तौर पे ट्रीट करते हैं। The next is thermal system, which comes under the category of boiler, furnace, and heat exchanger. So, how to conduct an energy audit of electrical system? Agar being a team, you want to conduct an energy audit of industry, then how can you conduct? First and foremost, we will discuss energy saving in a lighting system. अगर लाइटिंग सिस्टम को हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटिंग का पता होना चाहिए। There are different 8 type of lighting systems. We will not discuss all of them, just few, and then we can compare कि कौन सी lighting system जो है वो सबसे ज़्यादा best है। The first one is incandescent, जिसे GLS भी कहते हैं, general lamp system, और then tungsten, then fluorescent lamp, and then blended lamps, metal halide lamps, and LED lamp. इसमें ज़्यादातर जो आपके घरों में लगे होते हैं या तो incandescent bulb, फ्लोरेसेंट लैंप जो कि ट्यूबलाइट्स होती हैं, या कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट जिसे हम वो भी कह सकते हैं, एनर्जी सेवर भी कहते हैं, या एलईडी लाइट्स जो अभी सबसे ज्यादा यूज हो रही होती हैं। कुछ घरों में ये बाकी भी यूज हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है डिफरेंट एप्लीकेशन, डिपेंड ऑन एप्लीकेशन ये डिफरेंट लाइट्स यूज होती है। सो इनकैंडेसेंट बल्ब तो मतलब काफी टाइम तक घरों में भी यूज होती रही हैं, जिसकी थोड़ी सी ग्रेश बॉडी होती थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई विल नॉट गो
टू मच डिटेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल नाइट्रोजन एंड आर्गन का रेशियो होता है जो कि इसके अंदर गैसेस फिल्ड होती हैं, एंड समथिंग। सो आप यहाँ पे एक लाइटिंग सिस्टम का जब भी आप ऑडिट करते हैं, आपको एक पैरामीटर नोट करना पड़ता है, एफिकेसी। जैसे हर सिस्टम की एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। उससे आपको अंदाजा होता है कि ये सिस्टम कितना एफिशिएंट है, चाहे वो थर्मल हो या इलेक्ट्रिकल हो। सिमिलरली लाइटिंग सिस्टम में जो आप पैरामीटर नोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एफिकेसी। एफिकेसी में क्या होता है कि कितने ल्यूमेंस पर वॉट है। एफिकेसी को कि अगर मैं आपको डेफिनेशन वाइज डिफाइन करूं तो इट्स कॉल्ड कि आपने कितने किसी भी लाइटिंग सोर्स से कितने ल्यूमेंस प्रोड्यूस किए और कितने इनपुट वॉटेज दिया उसको उस ल्यूमेंस को प्रोड्यूस करने में। दैट इज कॉल्ड द एफिकेसी ऑफ दैट लाइटिंग सोर्स। तो अगर आप इनकैंडेसेंट लाइट की एफिकेसी को देखें तो उसकी एफिकेसी जो है वो 12 वॉल्यूम्स पर वॉट है, ठीक है। सो दैट इज लाइक बहुत ज्यादा कम है ये। अब उनको बाकी लाइटिंग सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो देन यू वुड बी नो कि कौन सा वाला सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। इसका जो कलर टेम्परेचर है वो तकरीबन इस रेंज में लाई कर रहा है। लाइफ स्पैन इसका तकरीबन 2000 और है। आपने देखा होगा इनकैंडेसेंट बल्ब समटाइम्स वैसे ही जल जाते थे, जैसे आप उसको ऑन ऑफ करते थे वो जल जाते थे, या बिला वजह ही बस ऑन होके ही जल जाते थे, जस्ट बिकॉज इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। देन टंगस्टन हैलोजन लैंप्स जो कि डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन, कुछ घरों में ये भी इंस्टॉल होते थे। इसकी एफिकेसी 18 है। इट इज मच बेटर एज कम्पेयर टू द इनकैंडेसेंट बल्ब जो स्टार्ट में आए थे, छोटे से रॉड जो होते थे। सो दैट्स कॉल्ड टंगस्टन। इसकी एफिकेसी इज मच बेटर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। लाइफ स्पेस का ऑलमोस्ट डबल ऑफ द टंगस्टन बल्ब था। अब मैं फ्लोरेसेंट लैंप की अगर बात करूं, these come into the different categories like depend on length, width and type. These are the type of lights. घरों में जो नॉर्मली यूज होते हैं वो T8 या T5 यूज होते हैं, मतलब width और लेंथ के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो। So these lamps are like 3 to 5 times more efficient as compared to incandescent bulb. इनकी ना सिर्फ एफिशिएंसी ज्यादा है बल्कि ये उससे 10 to 20 times last longer. अगर आपने देखा हो तो नॉर्मली आपके घर का स्टार्टर खराब हो जाता है बट आपका फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट खराब नहीं होता। So that's why the life of the fluorescent tube light is much better, or approximately 50 times, I would say, more efficient as compared to the other lighting system. So I'll just minimize this. So the compact लैम्प जिसे हम CFL कहते हैं या एज वेल एज एनर्जी सेवर भी कहा जाता है घरों में। तो उसके अगर ल्यूमेंस की मैं बात करूं तो ल्यूमेंस पर वॉट जो है इसके मच बेटर एज कम्पेयर टू इनकैंडेसेंट बल्ब के 12 थे। फिर उसके बाद अगर मैं ट्यूबलाइट की बात करूं तो उसके 18 थे। नाउ इट हैज अ एफिकेसी ऑफ 60 ल्यूमेंस पर वॉट, सो लाइक वे मच बेटर एज कम्पेयर टू द लास्ट टू। जो बाकी मैंने बीच में स्किप कर दिए वो भी उसी रेंज में लाइक कर रहे थे, तो लाइक 200 और 800 नॉट एफिशिएंट और बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर ऑल। सो लाइफ स्पैन की बात करें तो 10,000 हॉर्स तक इसके है, मच बेटर। अच्छा, हियर वी गो इज द कंपैरिजन ऑफ ऑल लाइट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ल्यूमेंस पर वॉट रेंज कितनी है हर एक की, और फिर उसके एवरेज कितना है, मतलब अगर आप टेक द एवरेज ऑफ ऑल। फिर कलर रेंडरिंग इंडेक्स, आप अगर आप एलईडी का देखें तो एलईडी का सबसे बेहतर था, फॉर एग्जांपल रेंज उसकी 90 to 120 है, ठीक है, लाइक हायर देन ऑल। एंड देन अगर एवरेज आप उसको करें तो इससे इसका तकरीबन वेपर लोअर प्रेशर सोडियम वेपर से कम है। लेकिन अगर इस लाइटिंग सिस्टम को आप देखें, नॉर्मली ये स्टेडियम्स वगैरह में लाइटिंग सिस्टम के लिए होते हैं, इसका एक ग्रीनी सा इफेक्ट होता है, तो वो फिर थोड़ा सा आप नॉर्मली आम रूटीन में आप नहीं यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई एलईडी का जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स है वो मच बेटर एज कम्पेयर टू द अदर्स हैं। सो अगर लाइफिंग की बात करें तो लाइफ इज आल्सो एलईडी की लाइफ सबसे ज्यादा बेस्ट है, बेहतर है। लोअर वेपर की मैं बात करूँ तो उसकी लाइफ ज्यादा है, लेकिन वो उसके स्पेसिफिक एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं, नॉर्मल जो मतलब हाउस होल्ड में उसके लिए यूज नहीं हो सकता। So depend on the different parameter, we can select different type of lighting system, but still now currently we are going with the LED for different application. अगर आप इंडस्ट्रीज में भी जाएं तो आपको बिल्डिंग में नॉर्मली हर जगह LED ही नजर आएंगी, और अगर कहीं पे फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट या फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट या कंपैक्ट फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट जो CFL कहते हैं, जिसे एनर्जी सेवर कहते हैं, वो लगे हुए हैं, तो दे आर गोइंग टू लाइक रेट्रोफिट इट विद LED।
यहाँ पे आप लक्स जो आप ल्यूमेंस कैलकुलेट करते हैं उसको हम लक्स लेवल भी कहते हैं। लक्स आई विल शो यू द इक्विपमेंट एज वेल। यहाँ पे आप सिर्फ ये चीज देख लें कि डिफरेंट रेंजेस के लक्स डिपेंड ऑन डिफरेंट टास्क के लिए आपको चाहिए होंगे। नॉर्मली ह्यूमन रूम में 2000 टू 5000 की रेंज में आपको चाहिए होते हैं एक कमरे में स्टडी करने के लिए, ठीक है। अगर आप लाइट मेजर करना चाहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल लाइटिंग का ऑपरेट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। ये एक इक्विपमेंट आपको जो शो किया हुआ है, इसका जो ये वाला सेक्शन है माइक टाइप का, इट इज जस्ट अ कैप फॉर दिस स्फीयर जो जिससे हम नॉर्मली ल्यूमेंस कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर लक्स मीटर, राइट। अगर यहाँ पे आपका ये सर्कुलर स्फीयर है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, रूम में डिफरेंट एरियाज पे इसका ल्यूमेंस, इस पे आपका जो यहाँ पे डिस्प्ले है, आपको लक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होते हैं। जितना आप उसको ऊपर करते जाते हैं उतना ही उसके लक्स ज्यादा होते जाते हैं, जितना उसको नीचे करते जाएंगे, लाइटिंग सोर्स से दूर करते जाएंगे, उतने उस पे ल्यूमेंस जो है वो कम होते जाएंगे, ठीक है। आप डिपेंड ऑन लाइक वेरी करेंगे डिस्टेंस को, तो आप डिफरेंट ल्यूमेंस के रीडिंग्स लेंगे, ठीक है। जिस लेवल पे आपको फॉर एग्जांपल रीडिंग या स्टडी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए ल्यूमेंस आप कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको स्टैंडर्ड टेबल से कंपेयर करेंगे कि ये किस रेंज में लाइट आता है। अगर वहाँ पे ल्यूमेंस कम है तो इट मीन दैट दिस लाइट इज नॉट efficient for you. You have to replace it with a bit higher. For example, अगर आपके पास 12 वॉट की एलईडी है, तो आप उसको 18 वॉट की एलईडी से रिप्लेस करते हैं अगर वहां पे आपको रिक्वायर्ड ल्यूमेंस नहीं अचीव हो रहे। ल्यूमेंस आपके पास लक्स मीटर से आ जाएंगे। एरिया आप रूम का लेंथ एंड विड्थ आप कैलकुलेट कर सकते हैं लेजर डिस्टेंस मीटर के थ्रू या टेप के थ्रू, ठीक है। यू नीड एरिया एज वेल कि कितनी एरिया के लिए आपके पास कितने ल्यूमेंस आ रहे हैं, एंड व्हाट इज आपके पास उस जो भी बल्ब या लाइट होता है उसके साइड पे टैग टाइप होता है जिसके ऊपर आपको वाटेज गिवन होती है। यू कैन कैलकुलेट द एफिकेसी। ल्यूमेंस आपने खुद कैलकुलेट कर लिए, वॉटेज लाइट के ऊपर गिवन होते हैं, ट्यूबलाइट में भी साइड पे कॉर्नर पे आपको वॉटेज वहां से रीड कर सकते हैं। जो एलईडी लाइट होती है उसके फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइड पे जो का लोअर सेक्शन होता है उसके साइड पे होता है एलईडी लाइट में। You can measure these two parameter and then calculate the efficacy. एफिकेसी अगर आपके पास कैलकुलेट होगी वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है, ठीक है। एफिकेसी तो हम सेविंग्स के लिए यूज नहीं करते, लेकिन हम आगे एनर्जी सेविंग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्यूबलाइट यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 36 वॉट की, और अगर उसको आप रिप्लेस करते हैं एलईडी लाइट से, तो आपको कितनी सेविंग्स हो सकती हैं। दिस कॉल इकोनॉमिक कैलकुलेशन, ठीक है। अभी तक आप जब मेजर कर रहे थे ये दैट वाज कॉल आपने साइड पे वैल्यूज या डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। जितने आपने ल्यूमेंस कैलकुलेट किए और वॉटेज नोट डाउन किया, दैट वाज कॉल्ड द साइट ऑडिट, ठीक है। ये आपने कंडक्ट कर लिया। अब नाउ यू विल कम टू द टेबल बाय लुकिंग एट योर डेटा, यू विल डू एनालिसिस ऑफ योर डेटा, ठीक है। आप एनालिसिस करेंगे कि आया तो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है, ठीक है। और यहाँ अगर एफिशिएंट नहीं है तो व्हाट आर द एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि हम कहाँ पे एनर्जी सेविंग्स कर सकते हैं, ठीक है। So now comes towards the analysis of the calculation. This is the comparison between the tube light and LED light, ठीक है। एक रूम में लेट्स सपोज एक ट्यूब लाइट लगी हुई है, वो फॉर एग्जांपल आप में से ही किसी का रूम है, ठीक है। उस ट्यूबलाइट के साइड पे जो रीडिंग दी गई है वो 36 वॉट की दी गई है, ठीक है। उसके बीच में एक बैलास्ट होता है, ठीक है, जिसे हम चोक भी कहते हैं। उस चोक की वॉटेज लेट्स सपोज आपको 6 वॉट दी गई, उसके ऊपर मेंशन होता है। आपके पास एक ट्यूबलाइट है, ठीक है, उसमें बैलास्ट लगा हुआ है, स्टार्टर साइड पे लगा होता है, ठीक है। यू कैन सी द ट्यूबलाइट एट योर होम। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 36 वॉट समथिंग फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, FTL स्टैंड फॉर फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, तो मैग्नेटिक ऑब्वियसली आजकल एलईडी ट्यूबलाइट्स भी लिखी हुई है जिसमें आई हुई है जो कि बस बारीक सा रॉड होता है, ठीक है। लाइक आई वुड शो इट इन टू द पिक्चर्स इन पिक्चर, बट वो उसमें आपका चोक वगैरह या स्टार्टर की जरूरत आपको नहीं होती। बट जो पुराने थे उसमें आपका चोक भी आपको नजर आएगा, आपको स्टार्टर भी नजर आएगा। वो मैग्नेटिक टाइप के उसमें ब्लास्ट लगे हुए होते थे। यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई बाय 1 इट्स मीन दैट के फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि एक ट्यूबलाइट की वॉटेज जो है वो 36 वॉट है, ठीक है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 200 पिक्चर है, लेट्स सपोज मैं एक हॉल की बात करूं, उस हॉल में 200 पिक्चर्स लगे हुए हैं, मतलब मुझे हर सेम वॉटेज के लगे हुए हैं, मुझे हर एक के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है देखने की। बस जस्ट आई कैलकुलेट, मैंने एक का नोट डाउन किया
कि ये 36 वॉट का है और विजुअली देखा कि सब सेम साइज के हैं, तो ऑब्वियसली सारे जो हैं वो 36 वॉट के ही होंगे। तो आई जस्ट काउंट डाउन ऑल द ट्यूब लाइट्स इन हॉल और इन अ रूम, जो कि तकरीबन लेट्स सपोज 200 थे, ठीक है। सो अगर 200 पिक्चर्स थे तो आई मल्टीप्लाइड 36 बाय 200। बट वेट, अगर आपके पास एक पिक्चर की रेटिंग, ट्यूबलाइट की रेटिंग जो है वो 36 है, तो ग्लास का अगर फॉर एग्जांपल वो ग्लास फ्री ट्यूबलाइट सिस्टम है, तो आपको फिर उसकी जरूरत नहीं होती, आप जस्ट 36 को 200 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर उसमें बीच में चोक भी लगा हुआ है, देन यू हैव टू कंसीडर दिस वॉटेज एज वेल। तो इस 6 को आप जब 36 के साथ प्लस करेंगे तो आपके पास 42 टोटल वॉटेज आ जाएगी लाइट की। सो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पिक्चर्स आ गया हॉल में, then multiplied with the 20, just because the operating hours per day are 20, and for all over there if you want to do a calculation, so it will be the 61,320. On the other hand, if you replace this CFL fluorescent tube light with the LED of 18 watt, ये अब 36 watt की थी, and this one is 18 watt. Normally LED आपके पास 12 watt में आती है या 18 watt में आती है। 12 watt का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, 18 watt का थोड़ा सा ज्यादा होता है, उस लिहाज से उसके ल्यूमेंस भी ज्यादा होते हैं। सो अगर मैं 18 watt की मैं बात करूं तो 18 watt की सिमिलर 1 LED की वॉटेज जो थी वो 18 वोट थी। सिमिलरली 200 पिक्चर्स आपने इसके रिप्लेस कर दिए, ठीक है। सो आपके पास यहाँ वॉटेज जो है वो 18 है। एलईडी के केस में आपके पास ब्लास्ट या चोक नहीं होता, तो दैट इज 0। सो जस्ट 18 प्लस 0 इज 18। So 18 multiply by 200, so multiply by total number of hours, multiply by जितने भी आपको all over दे। मैंने यहाँ पे रफली 365 डेज लिया है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी जगह का ऐसे कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि बीच में हॉलीडेज होते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल का या यूनिवर्सिटी का, तो आप उस लिहाज से नंबर ऑफ डेज को कम करके उसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। So here we go is 26,000. So roughly you can see कि यहाँ पे डिफरेंस आपके पास 35,000 यूनिट्स का आ रहा है पर यूनिट। किलोवाट आवर मीन एक यूनिट पर ईयर, ठीक है। वाई स्टैंड फॉर ईयर। सो अगर आपके पास अभी तो यूनिट बहुत महंगा हो गया, पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को यूनिट दिया जाता है सब्सिडी रेट पे, तो वो 14 पीकेआर पर यूनिट था, बट नाउ इट्स इंक्रीज अप टू 22, बल्कि कुछ इंडस्ट्रीज में तो वो 24 भी क्रॉस कर रहा है। सो ये सब्सिडी रेट अब खत्म हो चुका है, लेकिन जस्ट फॉर द रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिया। तो अगर आप अब यहाँ पे आपके पास टोटल यूनिट्स आ गए, ठीक है, पर ईयर, इसको आप अगर रुपयों से जो कि आपके पास प्राइस पर यूनिट आ गया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास टोटल रुपए पर यूनिट आ जाते हैं कि इतनी सेविंग हो सकती है फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास 4,90,000 तक की सेविंग्स हो सकती है। सो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, ठीक है, लेट्स सपोज आपका 1000 रुपीज पर पिक्चर, जो कि नॉर्मली 1000 रुपीज नहीं होता, लेकिन अगर आप बहुत ही हाई फाई पिक्चर उसके लिए यूज करते हैं, नॉर्मल पिक्चर इट विल कॉस्ट यू 250 रुपीज। आपकी 18 वोट की जो बल्ब आता है आपका एलईडी बल्ब, वो 250 का होता है। उसके साथ आप डिपेंड करता है पिक्चर आप किस स्टाइल और डिजाइन का लेते हैं। नॉर्मल पिक्चर विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 250 और 300, बट अगर आप बहुत ज्यादा लग्जरियस पिक्चर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी होटल के लिए लेते हैं तो दैट विल बी ऑलमोस्ट अराउंड 1000। लेट्स सपोज, तो अगर उसका कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास अगर आप 200 पिक्चर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी अराउंड 4 lakhs, राइट। सो स्टिल if you calculate the payback period by dividing the savings divided by initial investment, so you will come to know that only 10 months is needed for the payback period. After 10 months, this amount of money, matlab you can save almost around 4,90,000 rupees per year by replacing one tube light with one LED light only. अब let's suppose अगर मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, sorry, not only one, 200 lights, fluorescent tube light with the 200 LED light, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4000, अब इंडस्ट्री सेक्टर पे मैं बात करूं या कमर्शियल सेक्टर में बात करूं, तो तकरीबन अराउंड 40-50 तो एक शॉप में लगी होती है एलईडी लाइट्स, ठीक है। तो अगर मैं पूरे कमर्शियल सेक्टर की बात करूं, अगर हम उसको रिप्लेस कर दें तो ऑलमोस्ट अराउंड, अगर मैंने फिक्चर्स यहाँ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगाए हैं, अगर इस फिक्चर्स को मैं 500 पे कर दूं तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 5 मंथ में अपनी कॉस्ट को रिकवर कर देगा, ठीक है। सो लाइक 5 मंथ इज नथिंग, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 मंथ में आपको पे बैक मिल रहा है, और उसके बाद
rest of the life is saving. So energy efficiency is some sort of, also we can call it a business nowadays, कि energy efficiency आपको पैसे क्रिएट करके देते हैं, बेशक नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ कैश, कि आपको हर मंथ कैश हाथ नहीं आता, बट आपकी पॉकेट से कैश नहीं जाता. So that is also something like a money saving, but we have to just only think about where are the areas of opportunities or improving. सो लाइटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, या इसको डिफरेंट तरीकों से एफिशिएंट बनाया जा सकता है. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कि एक एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम के लिए लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम अगर इंस्टॉल किया जाए तो दैट वुड बी मच बेटर. ऑक्यूपेंसी सेंसर फॉर एग्जांपल, ऑक्यूपेंसी सेंसर ये काम करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई एम सिटिंग हियर, ठीक है, और मेरी 5 to 10 मिनट से कोई मूवमेंट यहाँ नहीं हुई, सेंसर ने कोई मूवमेंट डिटेक्ट नहीं की, तो इट विल टर्न ऑफ द लाइट ऑफ द रूम. ठीक है, सो नाउ लाइक इस रूम में इस वक्त ऑक्यूपेंसी सेंसर इंस्टॉल नहीं हुआ, सो दैट्स व्हाई लाइट ऑफ नहीं हो रही. अदरवाइज 5 to 10 मिनट्स के बाद जितना हमने टाइमर सेट किया होता है उसके बाद लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है. ठीक है, that was also really good for the energy saving. Second is timer. I will show you the video. अब यहाँ पे इस वीडियो में what I want to like show it to you कि यहाँ पे टाइमर यूज हुआ है. ये ऑक्यूपेंसी सेंसर को सेंस नहीं करता. फॉर एग्जांपल इस गैलरी में, दैट इज द गैलरी ऑफ माय अपार्टमेंट, बट लाइक इस गैलरी में अगर आप जितनी बार भी आए जाए ये लाइट ऑन नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आप इस बटन को प्रेस नहीं करेंगे. जैसे ही आप बटन को प्रेस करते हैं लाइट ऑन हो जाती है, लेकिन आफ्टर 2 मिनट्स लाइट दोबारा ऑफ हो जाती है. 2 to 5 मिनट्स. अगर आप फॉर एग्जांपल आपको दोबारा ऑन करनी पड़ती है, तो ये ऑक्यूपेंसी सेंसर नहीं है. आपको मैं सेंसर भी इसमें शो करती हूँ, बट इट विल लाइक ये आप उन एरियाज में इंस्टॉल कर सकते हैं जहां आपको पता हो कि ज्यादा मतलब मूवमेंट नहीं है और यहाँ आपकी लाइट की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है. सो दैट यू कैन इंस्टॉल दिस इक्विपमेंट ओवर देयर. सो यू कैन शो इन द वीडियो कि जैसे मैं बटन प्रेस करती हूँ लाइट ऑन हो जाती है सेंसर के थ्रू, बट after 5 to 10 minutes the light automatically दोबारा ऑफ हो जाती है. So I have to press this button again when I am moving in gallery. So the light turned on, so you can see the sensor over here. That is based on the timer, not on the occupancy sensor. So the key card timers, you can see those control system in the hotels. कि आप फॉर एग्जाम्पल जब किसी होटल में जाते हैं तो आपको वहाँ पे कार्ड दिया जाता है. ठीक है, साइड पे सॉकेट होता है, आप कार्ड अपना इंसर्ट करते हो सॉकेट में तो आपकी रूम की लाइट ऑन हो जाती है. जैसे आप कार्ड विड्रॉ करते हो तो आपकी लाइट जो है रूम की दोबारा ऑफ हो जाती है. सो दैट्स कॉल्ड की कार्ड कंट्रोल सिस्टम. जब तक आपका कार्ड प्लग इन रहता है आपके सॉकेट में जो कि मेन डोर पे होता है, जो दैट कार्ड आल्सो यूज एज अ की टू द रूम, बट दैट सिस्टम इज कॉल्ड की कार्ड कंट्रोल सिस्टम. जिसमें आप कार्ड इंसर्ट करते हो सॉकेट में तो तब आपकी रूम की लाइट ऑन होती है, रूम विल स्टे ऑन if the card is in the socket. जिस लम्हे आपने कार्ड विड्रॉ किया it will turn off. Scheduling, आप scheduling करते हैं लाइट की, that is completely manual. कौन सी लाइट जो है कब ऑन रहनी चाहिए कब ऑफ रहनी चाहिए. सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम में आप मेन ब्रेकर से लाइट्स ऑन ऑफ करते हो, या अगर बीएमएस सिस्टम है तो मेन कोई एक सिस्टम के साथ आप कनेक्ट करके वहां से ऑफ और में सारी लाइट जो है वो ऑफ कर देते हैं. ठीक है, डे लाइट हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस गैलरी में भी वन साइड पे है विंडो बनी हुई है डे लाइट हार्वेस्टिंग के लिए. तो इफ अगर बटन कोई ऑन नहीं करता तो still they can move around in the gallery. They don't need in the night you need light system, so you can just turn on and move around the gallery and then it will turn off after 5 to 10 minutes. So that would be discussed the energy savings in lighting system. ठीक है, अगर आप अपने घर का, अपने शॉप का या अपने इंडस्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ आप काम करते हो वहाँ कोऑर्डिनेट करना चाहते हो कि आपके रूम में या आपके पूरे ऑफिस में कितने ट्यूबलाइट्स लगे हुए हैं या कितने कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट एनर्जी सेवर लगे हैं, अगर उसको आप एनर्जी एलईडी से कन्वर्ट करते हैं तो आपको कितनी सेविंग्स हो सकती है. यू कैन डू दोस एनालिसिस और कैलकुलेशन बाय योर ओन नाउ एंड जस्ट शो इट टू योर टॉप मैनेजमेंट दैट यू कैन सेव दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय जस्ट रेट्रोफिटिंग ऑफ लाइटिंग सिस्टम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो दैट इज जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जस्ट ट्राई टू ऐड वैल्यू टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो वैल्यू एडिशन इज रियली इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. सो अगर आप वैल्यू एडिशन करते हैं सो ऑर्गेनाइजेशन विल आल्सो रिस्पेक्ट यू एंड लाइक विल वैल्यू यू. सो दैट इज समथिंग वैल्यू एडिशन इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन कि आप अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनर्जी सेविंग करते हैं
So ultimately you will be having a benefit for that in future. So being an energy engineer, you should always look for opportunities that where you can save energy. Lighting system was one of the opportunity where you can save money. But let's talk about the electric motor. Electric motor आपके घर में जो सीवी सिस्टम या वाटर पंपिंग सिस्टम में भी यूज हुआ होता है. So electric motor is also used in household. ठीक है. और इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो इंडस्ट्री के लिए उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट है. First we will discuss what is electric motor. ठीक है. Some of the students, if they are like not electrical engineer, then they will be having a brief background of electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन. अच्छा, बीच में फिनोमेना जो जिसके से ये काम करती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि इसके रोटर, यू कैन सी दिस इज कॉल्ड रोटर, स्टेटर इसके इंटरनल वाइंडिंग को कहते हैं. तो उसके दरमियान जब इसकी रोटेशन, इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इसके वाइंडिंग के बीच में, तो इससे हम आउटपुट पे वर्क लेते हैं. ठीक है. तो इंडस्ट्री एप्लीकेशन में ये डिफरेंट पंपिंग में, कंप्रेसर सिस्टम के फैंस में और कन्वेयर्स में यूज होती है. We will discuss more in detail, but इलेक्ट्रिक मोटर नॉर्मली आपके घर में या आपको इंडस्ट्री में कुछ इस तरह से नजर आएगी. ठीक है. सो दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट. अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर के जो कवरिंग है या यॉक को ओपन करें तो आपको इस तरह से नजर आएगी. दिस इज द रोटर. ठीक है. दिस इज कॉल्ड रोटर. दिस इज द आउटपुट शाफ्ट. ठीक है. ये इसके बेयरिंग होते हैं. अच्छा, आई विल शो यू कि आपके बेयरिंग अगर वीक हो ना, या बेयरिंग आपके मतलब खराब हो जाए, ठीक है, तो उससे भी आपके पास सेविंग पोटेंशियल अवेलेबल होता है. हियर इज द बेयरिंग. ठीक है. तो आप बेयरिंग को देखते हैं कि मोटर्स की बेयरिंग वो आपको विजुअली बाहर से बाहर में नजर आती है. ठीक है. स्टेटर एंड रोटर आपको नजर नहीं आता, बट बेयरिंग आपको मोटर के शाफ्ट पे नजर आती है. सो यू कैन सी बीइंग एन ऑडिटर या व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ द बेयरिंग. सो इलेक्ट्रिक मोटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. डीसी मोटर्स, एसी मोटर. नॉर्मली इंडस्ट्रीज में या आपके घरों में एसी मोटर्स लगी होती हैं. डीसी मोटर्स जो होती हैं उसमें दो टाइप्स होती हैं, ब्रशलेस या ब्रश्ड. ब्रश्ड के फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे सीरीज वाउंड, शंट वाउंड, कंपाउंड वाउंड, परमानेंट मैग्नेट. ठीक है. ब्रशलेस की कोई टाइप नहीं है, उसके सिंगल वन टाइप ही होती है. ठीक है. अच्छा, डीसी मोटर कहाँ पे यूज होती है? ये भी इंडस्ट्री में यूज होती है, लेकिन जहाँ पे आपको लो टॉर्क स्पीड चाहिए होती है और कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है. आपने स्पीड को चेंज नहीं करना, आपका लोड जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए. जैसे कन्वेयर बेल्ट्स, तो उसके ऊपर जो इंडस्ट्री का आउटपुट प्रोडक्ट होता है वो एक खास लोड का होता है, तो बस उसी को वो जा रही होती है. ठीक है. तो अगर आपने देखा होगा तो इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट लाइंस होती है. एक प्रोडक्ट के लिए एक कन्वेयर बेल्ट की लाइन जा रही होती है, दूसरे प्रोडक्ट के लिए दूसरी की जा रही होती है. एक प्रोडक्ट की लाइन दूसरे के लिए यूज इसलिए नहीं होती क्योंकि जहाँ पे डीसी मोटर यूज हो रही होती है तो वहां पे आपकी स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए. जो आपका टॉर्क होता है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो आप चेंज नहीं कर सकते. तो दैट्स व्हाई दे हैव डेडिकेटेड लाइन फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट. इसी के केस में क्या होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस. सिंक्रोनस में आपके पास कांस्टेंट स्पीड, एसिंक्रोनस में आपके पास स्पीड वेरी हो सकती है, जिसमें डिफरेंट टाइप में सिंगल फेज, थ्री फेज. नॉर्मली आपको डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में थ्री फेज नजर आएंगी, जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस पे लेट्स डिस्कस के कहाँ यूज होती है. मेजर पोर्शन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको नजर आएगा वो आपको पंप्स में, फैंस में. फैंस का यूज कूलिंग टावर पे आपको नजर आएंगे. फैंस वहां पे आपको मोटर्स ऊपर पे कूलिंग टावर के ऊपर आप जाएंगे ना, वहां पे आपको फैंस नजर आएंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड कूलिंग टावर पे ट्रायल से चढ़ना पड़ता है ऊपर, मतलब आप इस तरह से नीचे से नहीं देख सकते. आप ऊपर चढ़ेंगे तो बिल्कुल उसके ऊपर आपको कूलिंग टावर के ऊपर मोटर इंस्टॉल नजर आएंगी. ठीक है. तो कुछ मोटर्स उसके नीचे भी लाइक यू कैन सी हियर, कुछ कूलिंग टावर्स की मोटर नीचे इंस्टॉल होती है. फॉर सम यू हैव टू गो अप. अच्छा, ऊपर जाने की क्यों जरूरत होती है? नीचे आपको जो है मेन पैनल से आप उसके मतलब वोल्टेज वगैरह, पावर एनालाइजर कनेक्ट करके डेटा ले सकते हैं. लेकिन फॉर नेम प्लेट आपको जब भी आप किसी मोटर का ऑडिट करते हैं तो आपको मेन पैनल से पावर एनालाइजर कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको नेम प्लेट की पिक्चर भी चाहिए होती है. ठीक है. नेम प्लेट की पिक्चर आपको रेटेड वैल्यूज जैसे वोल्टेज, करंट, एफिशिएंसी और क्या कहते हैं यस पावर के लिए चाहिए होता है कि कौन सी पावर है. तो आप किसी भी मोटर की एफिशिएंसी तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास रेटेड वैल्यूज अवेलेबल हो. ठीक है. देन यू कैन
take values from the main motor panel and then you can do analysis. Analysis हम further इस presentation में discuss करेंगे, but before we go into the analysis, these parameters you should keep in mind what you are doing the audit of electric motor. So here you can see the low pressure pump, induction pump motors, hydraulic pump और हाई प्रेशर पंप. जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां में आपको वहां का इलेक्ट्रिशियन या यू कैन से जो इंजीनियर होता है, मेंटेनेंस इंजीनियर, ही विल टेल यू कि मतलब कौन सी मोटर किस एप्लीकेशन के लिए यहाँ यूज हो रही है. आपने एनालिसिस सबके लिए सेम करनी है, बट लाइक you have to name while taking the data, you have to name each and every motor so that आप उसके डेटा को मतलब मिक्स ना कर दें कि आपने डेटा जो है एक का कलेक्ट किया हुआ है और जो शीट है आप उसकी दूसरी के साथ. तो जब आप पावर एनालिसिस से भी डेटा लें तो उसको सेम नेम दें जो आपके साथ मैनुअल शीट में हो. तो मोटर ऑडिट के लिए ऑडिट शीट एज वेल कि आप मैनुअली कैसे किसी मोटर का ऑडिट करते हुए डेटा लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर किस मोटर का है, फॉर एग्जांपल उसके वोल्टेज नोट करते हैं, उसके करंट नोट करते हैं मैनुअली. पावर एनालाइजर आपका तकरीबन कोई मोर देन 24 आवर का डेटा ले सकता है, but still you have to take the data manually just because you can compare later on. कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैनुअल नहीं लेते, पावर एनालाइजर से आप सेम नाम दे नहीं देते हैं, स्टिल बाद में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है. तो आप मैनुअली डेटा लें ताकि at the end if you forget something you will be having the sheet in your hand, so you can just compare your analyzer data with the sheet. You have this idea. सारी वैल्यूज ना लें अब इससे, क्योंकि वो सेकंड में काफी वैल्यूज वेरी करी होती हैं एसी के केस में. तो आप कुछ वैल्यूज लें ताकि एटलीस्ट आपको मोटर का नाम, उसके रेटेड पावर, करंट वो अपने पिक्चर लें, लेकिन आप यहाँ पर मैनुअली शीट में भी लें. आई विल रिकमेंड कि व्हेन यू आर टेकिंग डूइंग द ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, टेक द पिक्चर ऑफ द नेम प्लेट, note down the data into manually on your sheet, as well as take the data from the main panel by using the power analyzer. So these three parameters you should keep in mind while doing the audit of electric motor. So electric motor are used in pumps, fans, crushers, grinders and crushers कहाँ होते हैं? For example अगर मार्बल इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे जो बड़े-बड़े ग्रेनाइट्स के स्टोन्स लाए जाते हैं तो उनको ग्राइंड एंड क्रश किया जाता है, उसके बाद मार्बल की स्लैब्स बनाई जाती हैं. एज वेल एज इट इज यूज्ड इन एलिवेटर्स, लिफ्ट वगैरह में जो आप यूज करते हैं. एग्रीकल्चर में इट इज यूज्ड टू पंप वाटर एंड रेजिडेंशियल एज वेल एज कि आपको वेल से वाटर पंप अप करके आपके टैप में लाता है. सो यू कैन यूज इलेक्ट्रिक मोटर पंप अप वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड टू योर टैप. सिमिलरली इन रेजिडेंशियल सेक्टर. सो अगर हम मोटर में एनर्जी यूटिलाइजेशन की बात करें तो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर ऑफ एनर्जी सेविंग, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ जो बेल्ट शाफ्ट की होती है ना वो अगर टिल्टेड हो, ठीक है, या कर्व हो, उसको अगर आप सिर्फ सीधा कर देना तो उससे भी आपकी 1 to 2% एनर्जी सेविंग हो सकती है. सो बीइंग एन ऑडिटर यू हैव टू विजुअली बी स्मार्ट so that you will be able to see the energy saving opportunities, right? So यहाँ पे आप जब मोटर का ऑडिट करते हैं तो वहाँ पे आप लोड फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, पावर फैक्टर एज वेल एज एफिशिएंसी एंड इम्बैलेंस कंडीशन. फॉर एग्जांपल अगर आपके मोटर की शाफ्ट की कपलिंग सही नहीं हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास दो टाइप के इम्बैलेंस आते हैं. एक तो स्टैटिक इम्बैलेंस होता है, एक डायनेमिक इम्बैलेंस होता है. स्टैटिक इम्बैलेंस में आपके पास जो स्टेटर और रोटर के बीच में इम्बैलेंस होता है, नॉर्मली आपके स्टेटर में प्रॉब्लम आती है, ठीक है. डायनेमिक इम्बैलेंस तब आपके पास क्रिएट होता है जब आपका मोटर के साथ जो पंप मोटर है वो आपके इलेक्ट्रिक मोटर के पास जब कपलिंग होती है तो उन दोनों के बीच में जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है उनकी वजह से डायनेमिक इम्बैलेंस आता है. या समटाइम आपकी बेल्ट जो है बहुत ज्यादा टाइट होती है उसकी वजह से भी. सो यू हैव टू ट्रीट दिस इम्बैलेंस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज योर एनर्जी कंजम्पशन. पावर सप्लाई क्वालिटी पैरामीटर जो आप देखते हैं, वोल्टेज, हार्मोनिक्स एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है. फ्रीक्वेंसी नॉर्मली आपकी इन रेंज होती है क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजर्स लगाए होते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में. वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स की मैं बात करूं, जब अगर डीसी सिस्टम की मैं बात करूं तो डीसी सिस्टम में आपके पास हार्मोनिक्स नहीं होते. दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द डीसी सिस्टम. लेकिन ऑन द अदर हैंड उसका शॉर्टकमिंग ये है कि वो सिर्फ आप कांस्टेंट स्पीड और लो टॉर्क के लिए यूज कर सकते हैं. हाई टॉर्क हाई लोड के लिए आप डीसी यूज नहीं कर सकते. यू हैव टू गो टू द जब आपके पास लोड ही वेरिएबल हो जाए, कभी आपके पास कम आउटपुट प्रोडक्शन आ रही है, कभी ज्यादा, ठीक है,
तो उस वेरिएबल लोड को टैकल करने के लिए आपको एसी की ज़रूरत होती है। सो ऑब्वियसली फिर सिस्टम में हार्मोनिक्स भी जनरेट होते हैं। हार्मोनिक्स क्यों होते हैं? हार्मोनिक्स आपके पास जो नॉन लीनियर डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल डायोड्स हो गया या जो डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स हो गए, उनकी वजह से सिस्टम में हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। हार्मोनिक्स होते क्या होते हैं? या आपके जो ओरिजिनल आपकी करंट एंड वोल्टेज की वेवफॉर्म होती है, उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ठीक है? सो आपके जो आउटपुट होती है वो डिस्टॉर्टेड होती है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम हीट अप हो जाता है एंड समटाइम लाइक टू मच हीट अप कैन लीड टू बर्निंग ऑफ द सिस्टम लाइक योर इक्विपमेंट। यहाँ पे नीमा से मोटर्स के लिए हर एक इक्विपमेंट या सिस्टम के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो आईईसी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक कमीशन समथिंग, एंड नीमा के स्टैंडर्ड यूज होते हैं। ठीक है? सो नीमा इलेक्ट्रिक मोटर को डिफरेंट उस पर क्लासिफाई करता है। फॉर एग्जांपल आई1 जो है वो लो एफिशिएंसी या स्टैंडर्ड एफिशिएंसी यूज होती है, फॉर एग्जांपल 75 to 80%। आई2 जो है हाई एफिशिएंसी, आई3 जो है वो तकरीबन 80 to 85% एफिशिएंट होती हैं। अभी जो आई4 क्लास आ रही है मोटर्स वो 95 to 98% एफिशिएंट मोटर्स आ रही है। सो नॉर्मली अभी जो इंडस्ट्रीज में विजिटेड, कुछ में आई2 क्लास की मोटर्स थी, कुछ में जो थोड़ा सा एफिशिएंटली रन कर रही थी वो आई3 क्लास की मोटर पे रन कर रही थी अपने सिस्टम को, एंड सम ऑफ द सिस्टम वर लाइक इवन रनिंग ऑन आई4 क्लास। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे कीप इन माइंड कि load factor is so much important for the analysis कि अगर आप मोटर को 75% के लोड फैक्टर पे चला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यू आर रीचिंग द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ योर मोटर। अगर आप लो लोड फैक्टर पे चलाएंगे तो बेशक उसकी रेटेड एफिशिएंसी चाहे वो 95 ही क्यों हो, उसको अगर आप अंडर लोड चला रहे हैं तो इट विल गिव द आउटपुट एफिशिएंसी आपकी कम होगी, तो उससे भी अल्टीमेटली आपकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो ज्यादा ही होगी। सो जस्ट कीप इन माइंड द नीमा स्टैंडर्ड कि आप जब मोटर परचेज करते हैं तो आई4 जो कि प्रीमियम क्लास मोटर्स हैं उनको परचेज करें। सो फर्दर कैलकुलेशन हम जाएंगे डिटेल में कि अगर आप मोटर को ऑडिट करते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है? सो व्हाई स्टडी एनर्जी एफिशिएंसी इन मोटर्स? इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम अकाउंट फॉर अराउंड 60% ऑफ इंडस्ट्रियल एनर्जी कंजम्पशन। अगर आप इलेक्ट्रिक सिस्टम को ऑडिट करते हैं तो आपको लाइटिंग सिस्टम का जब भी आप ऑडिट करते हैं कीप इन माइंड कि उसका पेबैक बहुत क्विक होता है। द लाइटिंग सिस्टम ऑडिट पेबैक इज टू मच क्विक, लो कॉस्ट, और बस मतलब आप जैसे कि महीनों में आपको पेबैक हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स की अगर आप सीमन की आई4 क्लास मोटर लेते हैं तो वो अ बिट एक्सपेंसिव होती हैं, बट स्टिल अगर आप पुरानी की गार्बेज वैल्यू उसमें ऐड करें तो उसकी वजह से पेबैक पीरियड थोड़ा सा कम हो जाता है, बट स्टिल दे आर एक्सपेंसिव। पेबैक पीरियड थोड़ा सा 1 to 2 years की तरफ चला जाता है। समटाइम इज गो टू, अगर आपके पास बहुत बड़ी साइज की मोटर्स है, फॉर एग्जांपल 200 किलोवाट की, तो वो फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो वो फिर उस लिहाज से उसका पेबैक पीरियड 2.5 years तक भी चला जाता है। सो दैट्स व्हाई अगर 60% कंजम्पशन अगर आपका कोई सिस्टम कर रहा है और 60% आप उसमें अगर आप 20% की एनर्जी सेविंग्स कर लें तो ऑलमोस्ट यू कैन सेव इन मिलियन, क्योंकि इंडस्ट्रीज का बिल जो है वो करोड़ों में होता है। लाइक वी ऑर्डर अप टिल नाउ, इवन जो छोटी सी इंडस्ट्री भी हमने ऑडिट किया ना उसका बिल भी 1.5 करोड़ से कम नहीं था, चाहे वो आप गैस का बिल लें या उसके इलेक्ट्रिसिटी का बिल लें। ठीक है? सो उसमें 60% तो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है ही है, उसमें अगर आप 10 to 15% या 20% कर लें तो इट्स ए ह्यूज सेविंग, यू कैन सेव इन एटलीस्ट मिलियंस। सो अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, तो 60% एनर्जी कंजम्पशन है, 15% फाइनल एनर्जी यूज होती है। सो एस्टिमेटेड फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कैन लीड टू एटलीस्ट डिमांड 7% तक तो आप रिड्यूस कर ही सकते हैं। मतलब 7% इज समथिंग कि जो वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लाइक इट विल नॉट डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन एंड लाइक एनी अदर कंडीशन। अच्छा, अब अगर आप साइट पे जाते हैं, ठीक है, और आप ऑडिट करते हैं तो हाउ द नेम प्लेट विल लुक लाइक। नेम प्लेट आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है? सो नेम प्लेट पे आपको यहाँ पे P2 ये आपको पावर शो हो रही है, या तो किलोवाट में होगी या फिर हॉर्स पावर में होगी। ठीक है? HP लिखा होगा, इस मीन हॉर्स पावर। वी कैन कन्वर्ट हॉर्स पावर इनटू किलोवाट बाय मल्टीप्लाइंग बाय 0.746। ठीक है?
सो यहाँ पे आपको ये आपके पास पावर होगी, ठीक है। यू कैन सी हियर द वोल्टेज जो कि 380 टू 415। यहाँ पे ये y का मतलब है आपके पास स्टार में कनेक्टेड है। जब आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर गिवन हो तो इट्स मीन दैट इट्स कनेक्टेड इन डेल्टा। A is ampere which is the current, जो कि आपके पास रेटेड करंट यहाँ पे 5 3 to 4 है, ठीक है। लेकिन सॉरी 3 to 5 है, लेकिन जो मैक्सिमम जाएगी, जो इसमें मैक्सिमम वो कहते नहीं अपने आई मैक्सिमम तक जाएगी, वो 6 एम्पेयर तक जाएगी, उससे अब नहीं जाएगी। दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इस मोटर का जो पावर फैक्टर है 0.85 to 0.79 है। वी कैन इम्प्रूव इट फर्दर बाय इंस्टॉलिंग द कैपेसिटर पैरेलल बैंक। सो एक मोटर की, और यहाँ पे इसकी रेटेड एफिशिएंसी जो है वो 82% है, ठीक है। तो एक मोटर का ऑडिट करते हुए आपने पावर को देखना है, रेटेड करंट को देखना है, रेटेड वोल्टेज को देखना है, और आपको उसका रेटेड पावर फैक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। यू कैन सी ये 50 is the hertz. Rest of the parameter you don't need to worry about that. So here again in detail that you can see the catalog, or like यहाँ पे frame designation, यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस, नॉर्मली सिंगल फेज या 3 फेज ही होती है मोटर, बट यहाँ पे जो टाइप या मैन्युफैक्चरिंग सारी डिटेल्स में जाने के बीइंग एन ऑडिटर आप इंटरेस्टेड होते हैं पावर फैक्टर में पीएफ, जो कि cos5 से या डिनोट किया जाता है, या पीएफ से, या फिर आप आरपीएम में भी, अगर आपने फॉर एग्जांपल मैकेनिकल ऑडिट भी करना है तो आपको आरपीएम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आरपीएम हो गया आपके, यहाँ पे देखिए पिछले वाले में आपको किलोवाट में पावर शो किया गया, यहाँ पे हॉर्स पावर में, एचपी में, यहाँ पे वोल्टेज आपको वोल्ट्स में शो होगा, यहाँ पे एम्प्स आपको एम्पेयर्स देंगे। तो these 4 पैरामीटर यू शुड नो व्हेन यू आर डूइंग द ऑडिट। आपने इस नेम प्लेट की पिक्चर लेनी है और मैनुअली भी अपने साथ शीट में डेटा नोट कर लेना है। So now before start how to save energy in electric motor, or we can say how to start the energy audit of electric motor. I will just have a look. Haidar Saab, do we have questions? Should we take questions now or at the end of the presentation? I have requested the participants to drop their questions in the Q&A box, and we will be answering them at the end. Okay, fine. Yeah. Thank you. Now we will discuss how to save energy in electric motors, right? आप saving करेंगे तो ultimately आपके पास profit ही होगा. So being an auditor, you have, after taking the data manually, जो कि आपने कैसा लिया, आपने नेम प्लेट की पिक्चर ली, आपने शीट में मैनुअली डेटा इनपुट किया, उसके बाद now it's time to connect the power analyzer. So this is the power quality analyzer, ठीक है, for 3 phase. We can also pick the data for the single phase as well. So यहाँ पे I will show you the detail pictures as well if I have. I show you later, ठीक है। So इसके 3 probes होते हैं जो कि 3 different आप उसको at the same time connect करते हैं। You can see here is it's connected in delta. The first phase is A, let's suppose B is the second phase, 3 is the third phase. So I have to connect the 3 different phases with the like the 3 different power analyzer phase with the motor phases, ठीक है। So उसके साथ जब मैं क्लैंप ऑन करूंगी तो उन क्लैंप्स के थ्रू ना सिर्फ मेरे पास वोल्टेज के लिए मैं उसको उधर ही एलिगेटर टाइप क्लिप्स होते हैं उन्हीं के थ्रू कनेक्ट करेंगे। और क्वालिटी एनालाइजर में आपके पास 3 वायर्स होती हैं क्लैंप ऑन करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए, और 3 लाइक विद एलिगेटर क्लिप्स फॉर द वोल्टेज मेजरमेंट एंड 1 फॉर द ग्राउंड, ठीक है, ताकि आपका इक्विपमेंट सेफ रहे। So you can see the power quality analyzer we had is 434 model, ठीक है, जो कि नॉर्मली इसके 1000 वोल्टेज तक फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज मेजर कर सकता है। एम्पेयर जो रेंज इसकी है वो तकरीबन 6000 एम्पेयर्स तक की थी, एंड पावर इज ऑलमोस्ट अराउंड 6 मेगावाट तक का पावर ये मेजर कर सकता है। So when you like go into the scope or like menu, you can just select a different menu over here. For example यहाँ पे अगर मैं फेजर अनबैलेंस को देखना चाहती हूँ, ठीक है, तो जब ये एरोस इनलाइन हो जाते हैं तो इट्स मीन दैट यू हैव कनेक्टेड द फेज लाइक इन अ राइट डायरेक्शन। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास आगे पीछे आता है तो इट मीन दैट यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर क्लैंप्स, जो कि करंट के क्लैंप, नॉर्मली करंट के क्लैंप्स में प्रॉब्लम आती है, वोल्टेज में नहीं आती, ठीक है। So you have to
हाँ, समटाइम्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अपना येलो जो है वो वायर के येलो की बजाय रेड के साथ कनेक्ट किया होता है। सो यू विल सी द नेगेटिव साइन ओवर हियर विद द वोल्टेज एंड करंट, तो इट्स मीन दैट कि आपने उनको क्रॉस किया हुआ है। तो यू कैन जस्ट चेंज द डायरेक्शन और सो दिस नेगेटिव साइन विल डिसअपीयर, ठीक है? So you can see this is you can say the phase and imbalance of your power analyzer, क्या है आपके कनेक्शन ठीक है या नहीं। Then you can see the power and energy, उस मेन्यू पे आप जाते हैं जिसमें आपके पास लाइफ टाइम डिस्प्ले हो रहा होता है। अच्छा, पावर क्वालिटी एनालाइजर प्रूफ का ये फायदा है कि आपके पास ये सारा डेटा जो है सेव हो रहा होता है, ठीक है? So you don't need to like note down the each and every second data that is always be saved in a file. At the end, you have to give the name to the file, and later on you can just install the proof for quality analyzer software into your computer. You just look at the, then you can just look at the log and do the analysis. अच्छा, तो यहाँ पे पावर एंड एनर्जी को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको एनालिसिस के लिए ज़रूरी होता है। एफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए वो आपको वॉटेज चाहिए होती है, करंट चाहिए होती है, वोल्टेज चाहिए होता है और साथ में पावर फैक्टर चाहिए होता है कि पावर फैक्टर किस रेंज में लेकर है। समटाइम यू विल ऑडिट इंडस्ट्रीज जिसका पावर फैक्टर आपके पास 0.65 में भी आ रहा होगा। वन थिंग कीप इन माइंड कि अगर आपके पास इनिशियली जब भी मोटर आप कनेक्ट करते हो, ठीक है? So if motor is in running condition, that is okay. इसमें कुछ नहीं होता, आप still clamp on कर सकते हैं मोटर को। You don't need to just shut down the motor and then clamp on and then conduct the audit. You can connect while it's in running stage. अच्छा, तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आप ऑडिट करेंगे तो वन थिंग कीप इन माइंड कि समटाइम्स उनका फॉर एग्जांपल अगर मैं बिस्किट इंडस्ट्री की बात करूं तो जब वो डो साइड पे लगे होते हैं तो वो डो ये में कुछ प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम दी जाती है। फॉर एग्जांपल इनिशियल प्रोडक्ट जब आप स्टार्च डालते हो उसमें सम प्रोडक्ट ऐड करने के बाद उसको 7 मिनट तक उसको वो मूवमेंट देते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद जो उसको दोबारा शट डाउन करते हैं, फिर अगेन उसमें मोर प्रोडक्ट ऐड करते हैं, देन अगेन डो को प्रोसेस करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सो वो जो डो की मशीन होती है वो ऑन एंड ऑफ हो रही होती है, ठीक है? सो एट द स्टार्ट आपके पास जो है क्या पावर फैक्टर बहुत ज्यादा लो आ रहा होता है जस्ट बिकॉज कि मोटर जो इनिशियल तार का करंट है वो बहुत ज्यादा ड्रॉ कर रही होती है, ठीक है? सो लेट स्टेबलाइज द मोटर एंड देन जब भी आप कैलकुलेशन करें टेक द एवरेज ऑफ द पावर फैक्टर, ना ही अब बहुत ज्यादा मिनिमम पे जाए ना ही बहुत ज्यादा मैक्सिमम पे जाए। आपके पास जब स्टेबल रीडिंग्स आने लग जाती हैं, ठीक है, तो उन सब का आप एवरेज लें, देन टेक दैट पावर फैक्टर फॉर योर कैलकुलेशन, ठीक है? सो वन थिंग कीप इन माइंड कि स्टार्ट में आपके पास मोटर जर्क लेती है तो उसका पावर फैक्टर लो ही होगा। वोल्टेज एंड एम्प्स भी लो होंगे, सो डोंट टेक दोस लोएस्ट वैल्यूज जो कि ऑलमोस्ट जीरो के अराउंड होती हैं, वो आप नहीं लेते। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल आपने पावर एनालाइजर कलेक्ट कर लिया, आपने एवरेज वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, लेट्स सपोज, ठीक है? Sorry. So here's the motors. Let's suppose we have motor of 115 kilowatt, which having a frequency of 50 watt, 50 hertz. Sorry. So load factor, let's suppose जो उसका average load factor हमने calculate किया है वो 70% था, ठीक है? मैयर पावर जो हमने पावर एनालाइजर के थ्रू कनेक्ट किया, एवरेज मैयर पावर इज 94 किलोवाट, ठीक है? और मैयर पावर फैक्टर जो हमने पावर एनालाइजर से कैलकुलेट किया वो है 0.75 व्हिच इज लो। सो हमारे पास जो कैलकुलेटेड एफिशिएंसी है ये वो 85% जो हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया। दिस एग्जांपल विल शो यू कि फॉर एग्जांपल अगर एक मोटर है, सेम मोटर 115 वाट की, वो 85% एफिशिएंसी पे रन कर रही है तो कितने वॉटेज वो ड्रॉ कर रही है। और अगर इसी मोटर के मैं लोड फैक्टर, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं मोटर नहीं रिप्लेस करूंगी, मैं जस्ट लोड इंक्रीज कर दूंगी। तो अगर मैं उस मोटर का लोड फैक्टर इंक्रीज कर दूंगी या फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी इंक्रीज कर दूंगी, तो एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी? या तो एफिशिएंसी आप डिफरेंट फॉर एग्जांपल आप उसकी मेंटेनेंस करते हैं तो उससे भी आपके पास ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप उसकी सिर्फ 10% एफिशिएंसी इंक्रीज कर देते हैं तो उससे आपके पास वॉटेज में कितनी रिडक्शन आ सकती है, ठीक है? So we will discuss these two example with two different cases. For example, old motor जो थी, for example with that was with the 70% load factor and 85% efficiency. तो आपके पास जो वॉटेज ड्रॉ आ रहे थे, किलोवाट ड्रॉ, वो 94 किलोवाट आ रहे थे। लेकिन इसी मोटर की एफिशिएंसी अगर मैंने इंक्रीज कर दी बाय मेंटेनेंस, बाय अप्लाइंग डिफरेंट मेजर्स, सो
उसकी एफिशिएंसी मेरे पास इंक्रीज हो गई है, मेरे पास प्रोडक्ट सेम है तो इस वक्त मैंने लोड फैक्टर को सेम रख दिया, ठीक है। तो अगर मेरे पास वही प्रोडक्ट सेम लोड फैक्टर के साथ आ रहा है तो ठीक है, तो मैंने एफिशिएंसी अगर उसके मेंटेनेंस इंक्रीज कर दिया ऑलमोस्ट अराउंड 95%, ठीक है। तो उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो न्यू किलोवाट मेरे पास आ रहे हैं वो अराउंड 84, तो मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो अराउंड 10 किलोवाट का आ रहा है। 10 किलो ओल्ड माइनस न्यू से मेरे पास जो डिफरेंट 10 किलोवाट का आ रहा है, लेट्स सपोज मैं 18 रुपीज पर किलो पर यूनिट अगर लूँ, तो उसको आई विल मल्टीप्लाई दिस 10 विद द ऑपरेटिंग आवर फॉर द होल ईयर, ठीक है। तो मेरे पास टोटल यूनिट्स आ गए फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास अराउंड 15 लैक्स जो है सिर्फ आ रहा है, 15 लैक्स की सेविंग्स आ रही है पर ईयर, ठीक है। So you can see here we can save for one motor 15 not 15, yes 15 तक। तो 15 लाख की सेविंग अगर आपको एक मोटर करके दे सकती है, तो अगर किसी इंडस्ट्री में 200 किलोवाट की ऑलमोस्ट अराउंड 10 मोटर, 15 मोटर, इवन 40 motors लगी हुई है, so how much you can save being an energy engineer in industry. So that's why I asked you in the start that why females are not in the industry sector. Just because currently जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री सेक्टर की सिचुएशन है, इंडस्ट्री इज मोर और लेस इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट, ठीक है। उसे अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, जो एफिशिएंसी मेजर से लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से दे आर नॉट लुकिंग एट द एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव, एफिशिएंसी से भी वो सेव कर सकते हैं, वो भी अल्टीमेटली प्रॉफिट ही है इंडस्ट्री का। सो दैट इज ड्यू टू लेक ऑफ अवेयरनेस। सो थोड़ा सा इन चीजों को हमें अपनी प्रैक्टिस में लाना होगा, कम टू द इंडस्ट्रीज, वर्क एज एन energy engineer, as a energy efficiency engineer, and bring up bring some changes to the industry. If there are opportunities, आप कुछ इंडस्ट्रीज में जाएंगे वो इंतहाई खस्ता हाल होंगी, ठीक है। there will be like a lot of opportunities there, just you have to point it out that there are opportunities and you have to do the economic calculation as well as the data analysis that असल में मसला ये है कि काफी इंडस्ट्रीज में उन्हें ऑन एंड ऑफ करना आता है सिस्टम को, ठीक है। मोटर जल गई है तो उसको रिप्लेस करना आता है, बट एग्जिस्टिंग सिस्टम को एफिशिएंट बनाना दैट इज नॉट द लाइक टास्क ऑफ द इलेक्ट्रिशियन, दैट इज द टास्क ऑफ एन इंजीनियर, दैट हाउ कैन ही मेक एग्जिस्टिंग सिस्टम more efficient but just by a small investment. So we are just lacking such engineers, so you guys are more than welcome to come into the industrial sector, do this analysis please to make our industrial sector more efficient, ताकि हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन की डिमांड है वो कम हो और एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही मजीद ऑप्टिमाइज करके मजीद हम अपनी आउटपुट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। सो लोड फैक्टर जो अगर फॉर एग्जांपल लोड फैक्टर आप मैन्युअली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मेजर किलोवाट जो आपके हैं, जो आपने पावर एनालाइजर से कैलकुलेट किए हैं, डिवाइडेड बाय जो रेटेड आप नेम प्लेट से लिए है, द रेशियो ऑफ बोथ these will give you load factor. For example एक मोटर है, उसकी रेटेड पावर जो है वो 20 किलोवाट है, वो रन हो रही थी 15 kilowatt पे, the ratio of these two will give you the load factor. Let's suppose this motor was running at 75%. Keep in mind अगर आप ग्राफ को देखें, this is the load factor graph versus efficiency. ये इस साइड पे आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे एफिशिएंसी शो हो रही है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लोड फैक्टर, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे इस फॉर एग्जांपल सिस्टम को एनालाइज करें तो almost around 75% you can see the motor is giving you the maximum efficiency, और जितना आप एफिशिएंसी लोड फैक्टर को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, उतना ही आपके पास एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे आपका लोड फैक्टर जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा उतना ही आपके पास एफिशिएंसी का ग्राफ जो है स्टेबल होते जाएगा और उतना ही आपका सिस्टम हाई एफिशिएंसी से रन होने लगेगा। Here we go, some power quality analysis of electric motor. असल में ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बहुत खुश्क है, but still if you will learn it, like you have no idea कि आपकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, ठीक है। The only thing you have to learn this calculation and analysis. And being a female, don't worry about it, it's not too much hard. Like ना ही इन एनालिसिस को सीखना इतना मुश्किल है और ना ही इसका साइट पे जाके डेटा कलेक्ट करना मुश्किल है और ना ही साइट पे जाके इक्विपमेंट कनेक्ट करना मुश्किल है, सब कुछ बहुत आसान है। Just have a little courage and learn these parameters.
अच्छा, for example, that was values taken from one of the energy audit. That was for the coal boiler, जिसमें हमने मोटर्स के उनके साथ जो डिफरेंट मोटर्स पैरामीटर्स मोटर्स कनेक्टेड थी, उनकी वैल्यूज ली थी। फॉर एग्जांपल, अच्छा, आप जब क्लैंप ऑन करते हैं पावर क्वालिटी एनालाइजर को, तो आप तीनों क्लैंप्स के करंट के वोल्टेज के एट द सेम टाइम करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो पावर क्वालिटी एनालाइजर में तीनों फेजेस की वैल्यूज एट द सेम टाइम आ रही होती है। जो नॉर्मली डिजिटल जो एवोमीटर भी उसे कहते हैं, जो कि आपको एम्पेयर वोल्ट एंड ओहम रेजिस्टेंस देता है, दैट यू कैन क्लैम्प टू द सिंगल फेज ओनली। क्योंकि आप अगर एक फेज का करते हैं, ठीक है, तो आपके पास साइनसॉइडल वेव होती है, दूसरे फेज में उस वैल्यू जब तक आप उसे निकालें, दूसरे में इन करें, तीसरे में इन करें, तो आपके पास वैल्यूज में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू नीड अ 3 फेज फॉर क्वालिटी एनालाइजर सो दैट यू विल बी एबल टू टेक द वैल्यूज एट द सेम टाइम। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पावर क्वालिटी एनालाइजर जो है वो वैल्यूज को सेव नहीं कर सकता, तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट थ्रू योर मोबाइल फोन, ठीक है। तो आप मोबाइल फोन से उसके फ्रीक्वेंट वैल्यूज लें, उसके वीडियोस बनाएं, सो दैट यू विल बी हैविंग एक स्मूथ सा आपके पास वैल्यूज आने लगे, देट ऑन यू कैन यूज दोस वैल्यू इनटू द एनालिसिस। बट जस्ट कीप इन माइंड कि आप तब तक का वेट करें जब तक आपके पास लोड स्टेबल नहीं हो जाता इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है। So here we go. Here's the, you can see the voltage values different. हर फेज में वोल्टेज वैल्यूज वेरी कर रही हैं, ठीक है। सो एट वन टाइम ये ली गई है कि अगर फॉर एग्जांपल इस फेज में 406 था, तो इस फेज में वो 404 था, इस फेज में वो 405 था, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज लूं, तो इट्स द सम ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3, सो दैट इज द एवरेज वैल्यू। हमेशा आप एफिशिएंसी कैलकुलेशन में करंट और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इम्बैलेंस वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहूँ, तो दैट इज द रेशियो ऑफ द हर फेज में, तो आपके पास जो रेटेड होता है डिवाइडेड बाय दिस, दैट विल गिव यू द इम्बैलेंस इन वोल्टेज, जो कि आपके पास नॉर्मली आपके पास जो 380 कहीं पे गिवन होता है, कहीं पे 415 का। So that will give you the voltage imbalance. By the way, आपको पावर क्वालिटी एनालाइजर यूज करते हुए मैनुअली इम्बैलेंस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती। वो आपके पास जो है पावर क्वालिटी एनालाइजर के ऑप्शंस अवेलेबल होती है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट, दैट विल कैलकुलेट यू पावर वोल्टेज एंड करंट इम्बैलेंस फॉर यू। So here are the calculation of the imbalance. For example, अगर आप वोल्टेज इम्बैलेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप तीनों फेजेस के वोल्टेजेस लें, ठीक है, उनका ये फेज 1, फेज 2, फेज 3। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज को माइंड में रखें कि यहाँ पे एक फेज का इसका ओवरऑल एवरेज लें, इस फेज का ओवरऑल जितना भी एवरेज है इस फेज का एवरेज लें, ठीक है। नॉट 3 फेजेस का इस तरह से आप हॉरिजॉन्टली एवरेज ना लें, ठीक है। ये तो फॉर वन फेज के फॉर वन टाइम के लिए मैंने दिया। अगर मैं ओवरऑल करना चाहती हूँ, तो ओवरऑल मैंने इस पूरे एक फेज का एवरेज लिया, इस दूसरे फेज का एवरेज लिया, तीसरे फेज का एवरेज लिया। इनका जब मेरे पास एवरेज आया, ठीक है, तो दैट इज फॉर फेज 1, दैट इज फॉर फेज 2, दैट इज फॉर फेज 3, ठीक है। अब इन तीनों का जब मैं एवरेज लेती हूँ, तो मेरे पास एवरेज वोल्टेज आ गया, ठीक है। दैट इज फॉर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 वोल्टेजेस। VAB मतलब ये कि लाइन टू न्यूट्रल for first phase, that is for second phase, that for third phase. Sorry, that is phase to phase voltage आपके पास है, not phase to neutral. So deviation आपके पास जो आ रही है average voltages की, वो हर एक में आ रही है तकरीबन अराउंड 2.3। अगर मैं दूसरी की बात करूं, तो हर एक का आपके पास एक एक में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप ओवरऑल इम्बैलेंस की बात करेंगे, वोल्टेज इम्बैलेंस की या अनबैलेंस की, तो दैट वुड बी, फॉर एग्जांपल अगर मैं VBC की बात करती हूँ, ठीक है, तो इसका एवरेज वैल्यू जो मेरे पास वोल्टेज की आ रही है इम्बैलेंस की, वो 6.7 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास ओवरऑल एवरेज वैल्यू आ रही है, उसको डिवाइड करने से मेरे पास परसेंटेज इम्बैलेंस आ गया। That is what we call imbalance in voltage, जो कि आपको पावर एनालाइजर खुद भी कैलकुलेट करके देता है। और अगर आपको उसकी परसेंटेज चाहिए, तो इसको आप जब टोटल एवरेज वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, so you will be having a percentage. So you can see here is 1.63% imbalance in voltage. It is recommended that the voltage imbalance should not exceed 1%. It is 1.6%. It's still okay. But when you are doing the audit of industry, you will see this 21% imbalance in their voltages. So there will be आपके, हाँ, एक चीज और आप RT
आरसीटी या आरटीयू जो है वो भी लगे होते हैं, जो आपके थर्मल डिवाइसेस होते हैं, जब मोटर के करीब वो लगे होते हैं तो उनकी वजह से भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी आपके पास इम्बैलेंसिंग वोल्टेज आता है। तो कीप इन माइंड, आप जब वैल्यूज ले रही होते हैं तो ऐसी टर्मिनल से लें, ऐसी जगह से लें कि वहां पे करीब कहीं पे आरटीयू डिवाइसेस ना लगे हों, ठीक है। तो उसकी वजह से भी वो जो वेव्स फॉर्म होती है वो क्रॉस हो रही होती है, जिसकी वजह से आप एक्चुअल वैल्यूज जो है वो नहीं कैलकुलेट कर पा रहे होते हैं। So it should not be exceed than 1%, but normally हमारे पास इंडस्ट्रीज में वोल्टेज इम्बैलेंस इतना ज्यादा नहीं होता, करंट इम्बैलेंस की काफी आपको वैल्यूज नजर आएंगी। So do I need to analyze, do I need energy analyzer for the voltage imbalance measurement? Yes, the reason is that कि आपका नॉर्मल एवोमीटर जो होता है वो आपको इवन 3 फेजेस में एट वन टाइम वोल्टेज करंट भी मेजर करके नहीं दे सकता। और ह्यूमन आई से आप फॉर एग्जांपल अगर 3 एवोमीटर भी कनेक्ट करते हैं तो यू डोंट हैव लाइक कैपेसिटी कि आप तीनों को एट वन टाइम 1 सेकंड में तीनों की वैल्यूज उठा सकते हैं, ठीक है। So that's like extremely I would say कि difficult, so it's better to have a power quality analyzer जो आपकी values को same भी कर रहा होता है, so and it will even calculate the voltage and current imbalance as well. So in current imbalance से होता क्या है, इसकी वजह से आपके मेजर इश्यूज जो आते हैं वोल्टेज इम्बैलेंस से, प्रोबेबली आपका जो लीडिंग पावर फैक्टर होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से ओवर हीटिंग होती है और प्री मेच्योर मोटर फेलियर होते हैं, आपको मोटर ट्रिप कर जाती है, ठीक है। सो समटाइम्स यू आर नीड अ कांस्टेंट सप्लाई और लाइक कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ योर प्रोडक्शन लाइन। तो अगर आपकी मोटर ट्रिप कर जाती है तो आपका पीछे से प्रोडक्शन आ रही होगी, आगे से मोटर ट्रिप कर गई होगी, तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज मेस। तो कभी भी being an industry maintenance engineer, you don't want a tripping or premature failure, just because in maintenance it will take time, और इंडस्ट्री में आपके पास एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, just because आपकी प्रोडक्शन पीछे रुक जाती है, और प्रोडक्शन रुकने का मतलब है कि मनी प्रोडक्शन रुक गई है, ठीक है। So the production of any material, like if it the baking material or like beverages or denim industry, the production should not stop. हाँ, ये होता है कि like लोड उनका वेरी करता है डे टाइम में और नाइट टाइम शिफ्ट में, बट दे वुड नॉट लाइक सिर्फ वो एनुअल मेंटेनेंस के लिए या सेमी एनुअल मेंटेनेंस के लिए स्टॉप करते हैं, बट दे वुड नॉट स्टॉप ड्यूरिंग दैट, मतलब सुबह से मशीन चल रही है और वो बीच में ट्रिप कर जाए, ठीक है। सो अ मोटर विल रन हॉटर देन व्हेन ऑपरेटिंग ऑन अ पावर सप्लाई विद वोल्टेज अनबैलेंस। तो उससे क्या होता है, आपकी वायर भी मतलब जल सकती है हाई टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि इनके अगर मोटर के प्रोब बहुत ज्यादा हीट अप होंगे तो उसकी वजह से अल्टीमेटली आपके वायर्स भी डैमेज हो जाती हैं। हाउ कैन यू सी के प्रोब हीट अप है यानी, यू हैव टू यूज द थर्मल इमेजर फॉर दैट। थर्मल इमेजर से आपको हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उससे आपको पता चलता है कि इस जगह का टेम्परेचर कितना है। तो अगर हॉटस्पॉट है वहां पे, इट्स मीन दैट आपके प्रोब का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। So you should, हाँ, प्रॉप का टेम्परेचर एक और वजह से भी हाई हो सकता है कि अगर इन केस आपके जो प्रॉप्स हैं वो लूज है, वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, टाइट नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपका वायर का टेम्परेचर या प्रॉप्स का जो जब आप थर्मल इमेजिंग करेंगे तो वहां पे आपको हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई होंगे। तो लूज कनेक्शन कैन आल्सो लीड टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वायर्स एंड पोर्ट्स। अच्छा, नेक्स्ट अनबैलेंस यूटिलिटी सप्लाई की तरफ से भी आ सकता है। सो यू हैव टू लुक एट द एलटी साइड एज वेल। जो आपकी एलटी साइड होती है उस साइड पे भी आपको वैल्यूज लेनी चाहिए। अनइक्वल ट्रांसफार्मर टैप, जो आपने टैप एक्सचेंजर की जो टैपिंग की हुई है वो इक्वल नहीं है, उसको आप चेक कर लें। टैप एक्सचेंजर को ट्रांसफार्मर के चेक कर लें। अच्छा, लार्ज सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसकी वजह से भी हो सकता है। सम डिफेक्ट इन योर पावर सर्किट, जैसे मैंने कहा कि मोटर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली टाइट नहीं है, उसकी वजह से भी इंक्रीज इन टेम्परेचर हो सकता है और अनबैलेंस क्रिएट हो सकता है। ब्लोन फ्यूज, कोई फ्यूज है वो जल चुका है या कोई कैपेसिटर है बीच में वो जल चुका है, उसकी वजह से भी अनबैलेंस क्रिएट हो सकता है। अनइक्वल इम्पीडेंसेस, कोई वायर है सही क्वालिटी की नहीं लगी, उसके टेम्परेचर ज्यादा है तो उसकी वजह से अनबैलेंस इन वोल्टेज आ सकता है। सो दीज आर डिफरेंट रीजन फॉर वोल्टेज अनबैलेंस, ठीक है। सो अगर आपके पास वन फेज है तो यू कैन यूज दिस करंट मीटर, we can call it avometer as well. You can calculate your amperes, voltage and ohm by using this
But if you have a 3-phase, then you can take the 3-phase value at the one time. ठीक है? So keep in mind this value is for the single phase only, and ये आपको सिर्फ voltage current at one time calculate करके दे सकता है. It couldn't store values for you. Secondly, ये आपको unbalance वगैरह, power factor वगैरह ये चीजें calculate करके नहीं दे सकता. Water performance analysis अगर आप करना चाहते हैं तो for example these are the different motors installed in the industries. For example heat water pump जो कि आपके cooling tower के साथ यूज होती है, cooling tower fan motors, hot. अच्छा, जब भी आप इंडस्ट्री में वाटर सर्कुलेट करते हैं तो वहां पे आपको कूलिंग टावर की फैंस अलग होती है, हॉट वाटर पंप अलग होता है, वैक्यूम पंप अलग होता है. तो दीज आर डिफरेंट मोटर्स इंस्टॉल्ड ऑन द साइट. ठीक है, हर एक की रेटेड पावर आपको नेम प्लेट से मिल जाएगी, रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट्स, पावर फैक्टर एंड किलोवाट मायर. ठीक है, सो यहाँ पे हाउ कैन यू कैलकुलेट द मायर पावर. एक तो आप रेटेड वैल्यूज लेते हैं उससे नेम प्लेट से. अगर ये फॉर एग्जांपल दीज वैल्यूज आर मैनुअली, ठीक है, अगर वोल्टेज करंट एंड पावर फैक्टर फॉर दिस मोटर इज टेकन मैनुअली. So if you multiply voltage with the current with the power factor multiply by under 3, so you will be having the 3-phase power here. ठीक है, KVA भी power quality analyzer से आपके पास कैलकुलेट हो जाता है. Otherwise you can calculate it by using the formula KVR भी. ऐसे KVA या KVR आपको कैपेसिटर पावर बैंक के लिए चाहिए होता है कि अगर आप उस मोटर के लिए कोई कैपेसिटर पावर बैंक डिजाइन करना चाहें तो you should have a values of KVA और KVR. ठीक है, सो ये KVA जो आपने कैलकुलेट पावर क्वालिटी एनालाइजर को यूज करते हुए कैलकुलेट किया है, यू कैन सी कि ये मोटर की रेटेड पावर थी 230 एंड दैट वाज रनिंग एट द पावर ऑफ 162, लेस देन आई कैन से कि मतलब मोर और लेस 55% लोड फैक्टर पे चल रही है. तो स्टिल देयर मोटर को जो आप मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलाने के लिए एटलीस्ट मोर देन 70 to 75% लोड फैक्टर पे चलना चाहिए. तो स्टिल इस मोटर की एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है, माइट बी इनकी डिमांड कम हो, उस वजह से इसको लोड फैक्टर पे चला रहे हो, बट स्टिल इनको स्विच करना चाहिए अनदर लाइन रादर देन. अच्छा, आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं एज अ ऑडिटर तो आप देखते हैं कि आप कुछ मोटर जो है वो 40% लोड फैक्टर पे भी चल रहे होंगे. व्हेन यू आस्क द इंडस्ट्रियलिस्ट कि व्हाई इट इज रनिंग ऑन द 40% लोड फैक्टर, तो दे विल बी सेइंग कि हमारे जो है समर में प्रोडक्शन ज्यादा होती है. फॉर एग्जांपल बेवरेजेस की अगर मैं बात करूं, विंटर में कम होती है, सो दैट्स व्हाई द लोड फैक्टर इज लो. ठीक है, और हम इसको चेंज इसलिए नहीं कर सकते कि जितनी कॉस्ट हमारी इसको चेंज करने पर लगती है तो इतनी कॉस्ट में मतलब हमारी विंटर में भी वेरी कर रही होती है डे टू डे, इस वजह से हम इसको चेंज नहीं कर सकते. तो कीप इन माइंड बीइंग एन ऑडिटर, अगर चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही है सिस्टम में, so you do need to like go for the like low capacity motor. बट अगर फॉर 1 month और फॉर 2 months आपके पास पूरा मंथ की प्रोडक्शन कम चल रही है और आप हाई कैपेसिटी के मोटर को लो लोड फैक्टर पे चला रहे हैं, तो इट्स रिकमेंडेड टू चेंज द इलेक्ट्रिक मोटर. आप बाईपास कर दें कि आपके पास जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो आप हाई कैपेसिटी की मोटर इंस्टॉल करें और प्रोडक्शन कम हो जाती है तो लो कैपेसिटी की मोटर इंस्टॉल करें. बट यहाँ पे ड्रॉबैक है कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बड़ी कैपेसिटी के मोटर के लिए प्रॉपर कन्वेयर सिस्टम डिजाइन किया होता है, पूरी लाइन बिछाई होती है. ठीक है, तो नॉर्मली वो कहते हैं कि अगर हम लो कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर एक दूसरी लाइन बिछानी पड़ेगी, तो वो एक बड़ा मैसअप बन जाएगा. एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में इतनी स्पेस नहीं होती. सो दैट इज समथिंग कि आप जब भी इंडस्ट्री लगाएं या किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई नई कमीशनिंग कर रहे हैं तो वो कमीशनिंग करते हुए कीप इन माइंड के मतलब किस किस्म की प्रोडक्शन सीजनल वेरिएशन प्रोडक्शन में आ सकती है, तो उस लिहाज से आप अपना सिस्टम डिजाइन करें. So for that also industry needs एनर्जी इंजीनियर जो कि उनको फिजिबिलिटी बना के दे सके कि फॉर एग्जांपल अगर उनकी प्रोडक्शन इतनी होगी तो उनको कितनी कैपेसिटी की मोटर्स चाहिए. अगर उनकी 70 to 75% प्रोडक्शन पे चले जाएंगे तो उनको कितनी कैपेसिटी की चाहिए. तो आया सीजनल वाइज भी इनको कैलकुलेशन करके दें और उनको बाकायदा एक फ्लो चार्ट बना के दें कि इनकी अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा लैग कर रही है तो उनको प्रॉपर 2 लाइंस बिछानी चाहिए. अल्टीमेटली उन 2 लाइंस की वजह से उनकी सेविंग्स बहुत ज्यादा होगी रादर देन रनिंग द होल सीजन. अगर आपको फॉर एग्जांपल सिर्फ एक सीजन पे चलता है और आप जस्ट बिकॉज कि आपने अगले सीजन उसी सिस्टम को चलाना है तब आपकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब ऑफ द सीजन जो है बड़े सिस्टम को लो प्रोडक्शन पे चलाएं, like that is not good for it's not recommended. So that is what we should
have awareness regarding it, so that कि जब भी कोई इंडस्ट्री कमीशन हो रही हो उसी वक्त इन पैरामीटर्स को माइंड में रखा जाए ताकि एक सस्टेनेबल चीज डिजाइन की जाए. Who will do this? Not an electrician, not an civil engineer. It will be done by energy engineer. So that's why energy engineer are really important. आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा. So क्या कहते हैं, now here we go, let's calculate the loading. कि अगर आप motor, I'm sorry it's rough and tough, but still you guys has to learn, like there are need to learn this subject for team as well, so that you'll be able to come up with something new, or might be then our industrial system will be like refined, or can say more, come up with the more efficient system. So that would be only possible कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी तो चला ही रही है इस सिस्टम को, बट माइट बी यू कैन कम अप विद सम इनोवेटिव सॉल्यूशन कि आप एक्सिस्टिंग सिस्टम को मजीद मॉनिटरिंग वाइज या कैन से ऑपरेशन वाइज मजीद इफेक्टिव बना सके. सो जस्ट कीप इन माइंड द ट्रिक्स एंड टिप्स व्हाइल डूइंग द एनर्जी ऑडिट्स. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप देखें रेटेड पावर अगेन फॉर द अनदर मोटर. सो यहाँ पे अगर मैं उसके वोल्टेज एंड करंट मैयर्ड है, पावर फैक्टर मैयर्ड है, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद √3 से यहाँ पे मेरे पास रेटेड पावर आ गई है, सेम केवीआर है, केवीए वैल्यू कैलकुलेटेड. तो अगर मैं इसका लोड फैक्टर कैलकुलेट करूँ तो लोड फैक्टर यहाँ पे मेरे पास आ रहा है मैयर्ड रेटेड डिवाइडेड बाय मैयर्ड, तो इट्स ऑलमोस्ट रनिंग एट 70% लोड फैक्टर, राइट. So similar, here we go, the other motor load factor, you can see here this motor is running at 45% load factor. यानी मतलब बाकियों का फिर भी अच्छा, this motor is running at 100 को भी क्रॉस कर रहा है. असल में समटाइम्स ऐसा होता है, डोंट वरी अबाउट इट, कि अगर कोई मोटर जो है वो 100% क्रॉस कर रही है तो ये बस उस टाइम जल नहीं जाएगी, ये बहुत कम टाइम के लिए होता है. समटाइम्स आपके पास प्रोडक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उसकी बात करूं मार्बल इंडस्ट्री की, तो आपके पास समटाइम इतना बड़ा स्टोन आ जाता है कि मतलब वो नॉर्मली आपका कैपेसिटी में आ रहा होता है लेकिन आपका थोड़ा सा रेंज से आउट होता है. तो हमेशा आप जिस भी सिस्टम को देखिए आपको एक टॉलरेंस रेंज दी जाती है कि आप तकरीबन 5 to 10% उस रेंज से ऊपर जा सकते हैं. तो समटाइम्स उनका जो वो होता है एज इनपुट स्टोन वो बहुत बड़ा होता है. तो अगर उस वक्त आप रीडिंग लेंगे तो ऑब्वियसली वो आपका 100 से भी क्रॉस करेगा, जस्ट बिकॉज कि आपका लोड बहुत ज्यादा आ गया है मोटर पे. बट इट डजंट मीन ये प्रोलॉन्ग नहीं रहना चाहिए कि 100% स्टिल इट्स ओके, बट 100% एंड 10%, 120% इतना ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस इट विल अल्टीमेटली कॉज हीटिंग ऑफ मोटर. ठीक है. तो उससे आपकी मोटर हीटिंग हो जाएगी. बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए मोटर की. मोटर शुड स्टे एट द बैलेंस कंडीशन. ठीक है. So any motor constantly operating below 50%, it's not recommended. वो underloading condition में आ जाती है. और अगर किसी को आप 100 पे क्रॉस करवा रहे हैं तो आपकी फिर मोटर जो है वो ओवरलोड कर रहे हैं आप. अच्छा, अंडरलोडिंग की कंडीशन में आप ये चीज देख लीजिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल द लास्ट मोटर इज 45% इसका लोड फैक्टर है. ठीक है. दैट इज फॉर कूलिंग टावर. तो अगर कूलिंग टावर का कंटिन्यूअसली यही लोड फैक्टर चल रहा है तो इट्स मीन दैट आपने इस मोटर को ओवर साइज डिजाइन किया है, कि आपकी इतनी डिमांड है ही नहीं और आपने एक्स्ट्रा लार्ज कैपेसिटी की मोटर लगा दी है. समटाइम यूएससी का इलेक्ट्रिशियन आपको कहेगा आपकी डिमांड जो है वो 5 किलोवाट की होगी, वो आपको रादर देन के 7 किलोवाट का रिकमेंड करे. चले ठीक है, आपका लोड बढ़ सकते हैं, आपको 7 किलोवाट की तरफ जाना चाहिए, वो आपको 10 किलोवाट रिकमेंड कर देगा, या समटाइम इवन 15 कर देगा कि साहब जी थोड़ा सा आप रेंज ज्यादा करें, कल को इंक्रीज हो सकता है. यार जस्ट कल को इंक्रीज हो सकता है. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल. ठीक है. आप मोटर को देखें, अगर इट इज अंडरलोडिंग में चल रही है फॉर लॉन्ग टाइम तो आप तो इस सिस्टम को गर्क चला रहे हैं. ठीक है. So while keep in mind, the efficiency shouldn't be below 50% just because it's ultimately increasing your energy consumption, जो कि आपकी बिल में रेप्लिकेट होती है. आपकी बिल जो है उसकी वजह से ज्यादा आता है, और इवन तो आपके लोड फैक्टर ड्रॉप होने की वजह से पावर फैक्टर भी इस पे इम्पैक्ट आता है, आपका पावर फैक्टर भी ड्रॉप डाउन हो जाता है. So wrong technique to calculate the motor loading, that is like normally जो इंडस्ट्रीज में एनर्जी एनालाइजर आर नॉट अवेलेबल, तो वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली एम्पेयर एंड वोल्टेजेस कैलकुलेट करते हैं, अपने रनिंग पावर फैक्टर को खुद से अज्यूम कर लेते हैं. समटाइम वो रेटेड पावर फैक्टर ही ले लेते हैं और उससे वो वैल्यूज कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय रेटेड करते हैं और वो कहते हैं बट दैट इज द
main values or loading of our motor. That is the wrong technique. अगर आपके पास 3-phase system है, so you should need power quality analyzer. You couldn't take, as I already explained, कि आप नहीं ले सकते at one time तीनों phases के voltages, current and power factor at one time. और वो क्या करते हैं कि वो पावर फैक्टर अज्यूम कर लेते हैं या यहाँ पे जो नेम प्लेट पे मेंशन होता है वो कर लेते हैं, या योर मोटर कुडंट रन एट द रेटेड वैल्यू. ठीक है, आप जब सिस्टम के साथ उसको सिंक्रोनाइज करते हैं तो ऑब्वियसली आपका पावर फैक्टर वेरी करेगा डिपेंड ऑन योर यूटिलिटी एंड एज वेल एज आपकी लोड पे डिपेंड करता है कि आप मोटर पे कौन सा लोड डाल रहे हैं. सो दैट इज द रॉन्ग टेक्निक. द एनालिसिस टेक्निक वी डिस्कस अर्लियर, यू शुड गो फॉर दैट. सो हियर वी गो. अगर हम रेटेड पावर इज 37 किलोवाट मैं दिस, ठीक है, अगर इसी मोटर को मैं लोड फैक्टर इंक्रीज करके चलाती हूँ तो ऑब्वियसली इसका पावर कंजप्शन तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली ये इसकी पावर लाइफ ऑफ द मोटर, जब भी आप फॉर एग्जांपल सीमेंस की मोटर बाय करते हैं तो दैट इज नॉट चीप. ओके, दैट इज लाइक इट हैज अ कॉस्ट. जस्ट बिकॉज यू आर रनिंग योर सिस्टम एफिशिएंटली, इट इज सेविंग एनर्जी फॉर यू, सो इट्स अ बिट कॉस्टली. तो आप अगर मोटर बाय कर ही रहे हैं, ठीक है, तो ट्राई टू बाय premium class motors. That's a bit high cost, but still you can save a lot of money. But the first value is made from the energy analyzer, while the second one is calculated from the assuming the power factor. ठीक है, अब पहली वैल्यू को जो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पावर फैक्टर इम्प्रूव किया. We didn't did anything. ठीक है, पावर फैक्टर इसका बहुत ज्यादा लोड था, 0.57 था इस मोटर का. ठीक है, जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में यहाँ पे डिस्कस किया कि इसका लोड फैक्टर बहुत ज्यादा कम है. ठीक है, तो लोड फैक्टर इंक्रीज करने के आपके पास डिफरेंट तरीके होते हैं. या तो आप अपना पावर फैक्टर इंप्रूव करें या फिर आप अपना लोड इंक्रीज करें. ठीक है, आप अपनी एनर्जी जो आप मोटर के ऊपर आपने लोड डाला हुआ है, आपने कम डाला हुआ है, उसकी कैपेसिटी से कम, तो आप उसको इंक्रीज करें. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पावर फैक्टर इंक्रीज किया जस्ट ओनली बाय इंस्टॉलिंग कैपेसिटर पैराबैंक टू दैट मोटर. ठीक है, हमने इस मोटर के साथ पैरल में कैपेसिटर पैराबैंक इंस्टॉल किया, जस्ट इंक्रीज द पावर फैक्टर एंड देन कैलकुलेट द पावर, जो कि आपके पास अराउंड 25 आ गई. अब जब हमने लोड फैक्टर कैलकुलेट किया तो वो इट वाज अराउंड 68.6%. so that is much better. तो अब अगर कोई भी मोटर आपके अराउंड 70% के करीब लोड फैक्टर पे ऑपरेट करेगी तो अल्टीमेटली इट्स एफिशिएंसी विल बी हाई, as we already discussed in the efficiency load factor graph. ठीक है, so now let's discuss how to minimize the voltage imbalance. Okay, voltage imbalance in single phase to wire like power quality analyzer you need for that. ठीक है, being an energy manager you have to look at your current and voltage imbalance. ठीक है, so आपने क्या करना है कि आप क्या अगर सिस्टम में इम्बैलेंस आ भी है, ठीक है, तो यू हैव टू लुक एट योर ट्रांसफार्मर साइड कि या तो आपके लोड बैलेंस नहीं है वहां पे, या फीडर्स में कोई मसला है. ठीक है, या फिर आपके टेप चेंजर में मसला है. वो टेप चेंजर ये ट्रांसफार्मर के बिल्कुल अपर आई कैन से ऑन वन साइड यू कैन जस्ट सी अ सर्कुलर राउंड शेप, यू कैन जस्ट सी इन राउंड शेप. ठीक है, यहाँ पे उसके टैप्स लगे होते हैं. ठीक है, तो आपने किसी एक टैप पे उसको ट्रांसफार्मर के मेन उसके टर्मिनल को कनेक्ट किया होता है. ठीक है, तो दैट इज माइट नॉट बी इन अ डिजायर्ड पोजीशन, तो आपने उसके टैप को चेंज करना होता है. तो देन यू विल नॉट बी हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ वोल्टेज इम्बैलेंस. तो आप अपने ट्रांसफार्मर के टैप एक्सचेंजर को चेक करें. ठीक है, बाय विजिटिंग योर ट्रांसफार्मर ऑन साइट. तो हॉटस्पॉट अगर आपके फॉर एग्जांपल एज वी वाज डिस्कसिंग कि अगर आपके सिस्टम में इम्बैलेंस है, दैट माइट बी जस्ट बिकॉज ऑफ लूज कांटेक्ट ऑफ मोटर. तो आपको लूज कांटेक्ट, अब फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम 380 से 415 के वोल्टेज पे चल रहा है, उसकी जो रेटेड करंट होती है वो भी ऑलमोस्ट अराउंड 6 एम्पियर्स तक होती है. यू कैन जस्ट चेक इट कि मतलब गर्म है या नहीं है. Being an auditor, keep in mind wear the safety gloves and don't like keep your safety. First of all, तो आप इलेक्ट्रिशियन को वो करें कि वो आपके टर्मिनल को कनेक्ट करें. Otherwise, if there is no electrician, then you have to connect it. Just wear the safety gloves and keep yourself into this region only, not to the contact terminal. Contact terminal के साथ आपका हाथ गलती से भी टच नहीं होना चाहिए. We did a lot of audit, but like अभी तक मेरा कभी भी हाथ टच नहीं हुआ. So
दीज आर द कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे अगर आपके पास थर्मल इमेजर होगा, ठीक है, तो व्हेन आप थर्मल इमेजर में आप देखते हो तो आपको इस तरह का रेड स्पॉट दिखता है। ये रेड स्पॉट इस वायर में इसलिए क्योंकि इसका ये कॉन्टेक्ट टर्मिनल जो है ये लूज है, जिसकी वजह से पूरी वायर, ये टर्मिनल कॉन्टेक्ट हीट अप हुआ है, उस कॉन्टेक्ट की हीट अप होने से आपकी पूरी वायर हीट अप हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपके पास वोल्टेज एंड करंट इम्बैलेंस आता है। तो बीइंग एन ऑडिटर यू हैव टू आल्सो लुक एट द वायर्स हीटिंग। So, measures for energy savings, you should use energy efficient motors, reduce the overloading and underloading conditions of electric motor by doing proper analysis, size to variable load, improve power quality. पावर क्वालिटी में आप पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, आप हार्मोनिक्स को मिटिगेट करते हैं, उसके साथ साथ पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए या पावर फैक्टर को लीडिंग पे लेके जाने के लिए आप कैपेसिटर पैरा बैंक इंस्टॉल करते हैं। वेयर टेयर में आप उसके बेयरिंग्स को चेक करते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं। So you can see that was the one of the it was a marble industry. It was one of the marble industry. So you can see the motor's condition over there. So it was connected with a conveyor belt. So आपको मोटर इंडस्ट्री में कुछ इस तरह की मोटर्स भी नजर आ सकती हैं। So यहाँ इसमें क्या है, लेक ऑफ वेयर एंड टेयर की वजह से लुब्रिकेशन नहीं होती, उसकी वजह से भी अल्टीमेटली आपकी कंजम्पशन हाई होती है। एक्चुअली मैंने आपको गेन कहा, इलेक्ट्रिशियन डोंट नो द बेनिफिट ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, एन इंजीनियर डज। सो आपको बीइंग एन इंजीनियर चीजों को देखना पड़ेगा कि हाउ मच lubrication is important for the electric motor, how much you can save by lubrication your motor only by just checking the belts of the motor, और लाइक अगर टर्मिनल बॉक्स आपका प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं है तो उसको ठीक करने से आपकी हीटिंग कम हो सकती है, जो कि अल्टीमेटली आपकी लाइफ ऑफ मोटर को इंक्रीज करती है। एंड वेंटिलेशन इज आल्सो रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी बिल्कुल कड़कती धूप में मोटर ना इंस्टॉल हो, ताकि आधी गर्म तो वो उसकी वजह से हो जाएगी, और आधी अगर आपके सिस्टम में प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं है तो उसने तो जल ही जाना है। सो अदर फैक्टर्स इन मोटर्स सिस्टम एफिशिएंसी, बेल्ट शाफ्ट अलाइनमेंट, एज ऑलरेडी डिस्कस कि आपकी बेल्ट के अलाइनमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपकी जो मोटर की बेल्ट है वो प्रॉपर्ली अलाइन होनी चाहिए, जो कि आपको डिफरेंट कन्वेयर बेल्ट्स पे शाफ्ट्स पे चेक करनी चाहिए, ठीक है। तो उससे भी ऑलमोस्ट अगर हम एक एग्जांपल को डिस्कस करें तो नॉर्मली स्टैंडर्ड सेल्स के 2.3% यू कैन सेव बाय अलाइनिंग योर बेल्ट ओनली, ठीक है। लेट्स सपोज एक मोटर की पर मंथ एनर्जी कंजम्पशन प्लांट में जो है 50,000 रुपीज पर मंथ है, ठीक है। उसका 2% जो है 12,000 से तकरीबन 4,000 से 1,200 रुपए से 400 रुपए पर मंथ बनता है, ठीक है। तो अगर पर ईयर के लिए मैं कैलकुलेट करूँ तो 15,000 से 54,000 रुपए बनता है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट सी कि आप एक बेल्ट के अलाइनमेंट से जो है 15,000 से लेके 54,000 रुपीज तक पर ईयर सेव कर सकते हैं। बेल्ट के अलाइनमेंट में आपको कितना टाइम लगता है, जस्ट यू हैव टू विजुअली सी कि बेल्ट अलाइन है, यू जस्ट चेक कि बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं है, बहुत लूज तो नहीं है। समटाइम तो आपको कुछ इंडस्ट्रीज में लटकती हुई बेल्ट्स नजर आएंगी, सो यू कैन जस्ट नोटिस इट विजुअली। सो वन थिंग अनदर थिंग आई वुड मेंशन हियर कि बीइंग एन ऑडिटर आपकी विजुअल ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी स्मार्ट होनी चाहिए, बाकी आपको अपॉर्चुनिटीज हर तरफ ही नजर आएंगी, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो या चाहे वो सिस्टम की इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज हो। So regular motor alignment can also save your money by prevention, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका मैकेनिकल फेलियर नहीं होता या डाउन टाइम, अनप्लान डाउन टाइम आपका रिक्वायर्ड नहीं होता। फिर एक इंडस्ट्री कभी भी अपने सिस्टम को शट डाउन नहीं चाहेगा, उसे अगर उसका सिस्टम इतना एफिशिएंटली चल सकता हो कि ऑल अराउंड द ईयर अगर उसे मेंटेनेंस की जरूरत ना हो तो वो उस पर बहुत ज्यादा खुश होगा, ठीक है। सो इफ यू कम अप विद द सिस्टम के मतलब जिसकी मेंटेनेंस वारंटी आप बहुत ज्यादा कम आप कर सकते हैं, हाउ, by making it more efficient, ठीक है। तो जिसकी वजह से प्रीमेच्योर फेलियर्स आपके प्रिवेंट हो जाएंगे। आपकी कपलिंग या सीलिंग बेयरिंग उनकी हेल्थ जो है उसको भी आप चेक करें कि अगर वो प्रॉपर्ली है तो उसकी वजह से भी आपकी हीटिंग नहीं होगी मोटर्स की, और अल्टीमेटली जब आपकी मोटर की हीटिंग नहीं होगी प्रॉपर्ली वो चलेगी विद द लेस मेंटेनेंस, तो आपकी कंजम्पशन भी कम होगी, और आपकी जो वेयर एंड टेयर की कॉस्ट होती है मोटर को रिप्लेस करने की या जली मोटर की वाइंडिंग को रिप्लेस करने की, तो ऑल द टाइम लुकिंग एट द मोटर की मतलब क्या जल गया है दोबारा से, तो वो आपकी कम हो जाएगी, लेबर कॉस्ट पे अल्टीमेटली आपकी इससे कम हो जाएगी, ठीक है।
सो हाँ, एक चीज कीप इन माइंड कि कपलिंग अगर आपकी प्रॉपर्ली नहीं होगी या आपकी बेल्ट प्रॉपर्ली अलाइन नहीं है तो उसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव वाइब्रेशन सिस्टम में प्रोड्यूस होती हैं। तो इवन दो इन वन ऑफ द इंडस्ट्री वी ऑडिटेड के उसमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है। We identified them, they didn't took a notice, and after 1 month that motor burned out, ठीक है। That cost them almost 3 lakh rupees to them. So if being an auditor, someone uh, if an auditor identify you an opportunity, just have a notice on that and try करें कि उस चीज को cope up कर सकें before you end up with burning up something. You can see here it's extremely poor lubrication. मतलब मोटर बनी है और उसके बाद कभी इसकी लुब्रिकेशन हुई नहीं है। सो इट्स लाइक अब आप खुद सोचिएगा कि ये मोटर हीट अप होगी, ठीक है, तो ये जले ही नहीं क्योंकि इसकी मतलब एक्सट्रीमली और इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसका टेम्परेचर तो ज्यादा होगा, अल्टीमेटली लॉसेस भी सिस्टम में बहुत ज्यादा होंगे। सो लाइक दीज ऑल आर द पैरामीटर यू शुड लुक एट एंड क्या कहते हैं इन सब में आपके पास अपॉर्चुनिटीज है सेविंग्स की। और अल्टीमेटली सेविंग्स कहीं जाती नहीं है, सेविंग्स इज एनर्जी, सेविंग्स इज अल्टीमेटली प्रॉफिट that's coming into your pocket or into your owner pocket. So optimizing a system or a process that motor is running at full capacity or for shorter time period instead of running continually with a partial load. We already discussed it. Just keep in mind while looking at the system के full load पे motor ने कब चलना है, ठीक है, और कितने time के लिए चलना है। We already discussed कि एक motor अगर longer time के लिए partial load पे चल रही है, just replace it. जब आपको या आप एक प्रॉपर दूसरी लाइन लगाएं, ठीक है, क्योंकि अगर आप 6 मंथ की पूरी कैलकुलेशन करें ना उसके लिए, तो ना सिर्फ आपके मोटर की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, एज वेल एज आपकी एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइक इट्स अंडरस्टूड दैट अगर आप 10 किलोवाट की मोटर को यूज कर रहे हैं 7 किलोवाट का लोड उठाने के लिए और अल्टीमेटली आपका 2 किलोवाट का उस वक्त प्रोडक्शन चल रही है, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप 10 किलोवाट इनपुट से यूटिलिटी से ले रहे हैं और आपको जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सिर्फ 2 किलोवाट का है, रेस्ट ऑफ द 8 किलोवाट यू आर जस्ट वेस्टिंग इट, कि आपने दूसरी प्रोडक्शन लाइन नहीं लगानी। दैट इज नॉट लाइक समथिंग इज everyone should take a notice of that while like doing the audit. सो फिटिंग मोटर ऑप्टिमाइजर आप लगाए या आजकल इन्वर्टर्स जिसे कहा जाता है, आप इन्वर्टर लगाते हैं जो कि आपके लोड के साथ साथ आपके वोल्टेज एंड करंट को वेरी करते हैं, तो आपको फुल लोड पे मोटर को नहीं चलाना होता है। इन्वर्टर्स आर सो रियली इंपॉर्टेंट जो आपको फ्री एंड देते हैं वेरिएबल वो करने के लिए, जिसे हम वीएफडी भी कहते हैं, ठीक है। आप पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं तो आपका जितना लोड होता है उतनी ही मोटर जो है करंट एंड वोल्टेज ड्रॉ करती है, बट स्टिल कीप इन माइंड मोटर की लोडिंग और ओवरलोडिंग में बहुत ज्यादा स्विंग पोटेंशियल है। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर मेंटेनेंस जस्ट कीप इन माइंड बेयरिंग से, लुब्रिकेशन से, बेल्ट से और लोडिंग जो आपकी वी ऑलरेडी डिस्कस द कैलकुलेटिंग ऑफ द अंडर एंड ओवरलोडिंग, कि उससे आप बहुत ज्यादा प्रीमेच्योर फेलियर्स को और बर्निंग ऑफ मोटर को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपकी रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स को इंक्रीज करती है, लाइफ टाइम आपके पास इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और अल्टीमेटली आपके सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। So there was one raised hand, but we will discuss the question answer session at the end. So कि अगर मैं किसी भी स्लाइड से पास आउट हो गई हूँ, at the end जिस स्लाइड पे भी आपको वापस जाना होगा, just note it down. We will go to that slide back for you and we will discuss it again. Okay, don't worry. आज की टॉपिक का या आज के प्रेजेंटेशन का बेसिक मकसद यही था कि आप लोगों को इनेबल किया जाए कि एटलीस्ट आप लोग को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये एनर्जी ऑडिटिंग का थोड़ा बहुत आइडिया हो, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मोर इन डिटेल। So manufacturing industries में this is one of the example. It was this picture was taken. It is not from the Google. You can see that is from one of the industry who was running at extremely like good load factor and efficiency and even wear and tear का maintenance का भी बड़ा ख्याल रख रहे थे। So जी सर, हम तकरीबन 4 हैं, तो हमें इसको ना थोड़ा सा भी कंक्लूड भी करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं। तो आप केवल एग्जांपल आप करके उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं और फिर इसको कंक्लूड करते हैं हम। सर थर्मल का सेक्शन रहता है अभी? वो नेक्स्ट किसी वेबिनार में कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने वो भी देखना है ना, टाइम और भी कुछ दूसरी चीजें भी हैं। सर टाइम कितना है हमारे पास?
हम 4:30 है, मैक्सिमम 15 मिनट्स ले सकते हैं हम। ओके सर, सॉरी एवरीवन। एग्जांपल इंक्लूड करें ना तो उसमें हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, तो उसके बाद हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, जब आप दिस इज एग्जांपल फ्रॉम वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के, फॉर एग्जांपल अगर आप 40 वॉट की एयर कंप्रेसर, अच्छा आप जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जाते हैं, दैट वाज द सेक्शन फॉर द एयर कंप्रेसर वैक्यूम पंप्स वर इंस्टॉल। अच्छा, तो आपके पास दैट वाज फॉर वन ऑफ द एग्जांपल फ्रॉम इंडस्ट्री जिसमें 40 किलोवाट की एयर कंप्रेसर की मोटर इंस्टॉल थी, ठीक है, जो कि फुल लोड पे ऑपरेट हो रही थी 365 डेज पर ईयर। तो if the motor for the air compressor cost जो कि around जो initial cost है, if that is this much, the motor efficiency is 90% which was calculated, and the electricity cost is this per kilowatt per month, ठीक है। So जो unit rate है वो 10.8, that was assumed value, ठीक है। How much that it cost to operate the air compressor for 1 year, आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस 90% एफिशिएंट मोटर को रन अप करने के लिए कितना एक साल में ये ऑनर को कितना जो है कॉस्ट करेगी, और जितना मनी स्पेंड हुआ है ये रिकवर होगा कितने टाइम में, ठीक है। So you can do a calculation from here. If the motor were 100% efficient, ठीक है, there would be an electric load 40 kilowatt. अगर वो 100% efficient है और 40 kilowatt की, let's suppose for the time being, लेकिन since we know that the motor is 90% efficient, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक लोड कैलकुलेट करने के लिए 90% पे डिवाइड करेंगे। 100% efficient मोटर ही exactly 40 किलोवाट पे चल सकती थी, क्योंकि 90% एफिशिएंसी के साथ रन कर रही थी, तो इसलिए दैट्स व्हाई वी कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक लोड दैट इज 44.4 किलोवाट, राइट। सो इट्स मीन दैट कि इस वक्त ये जो किलोवाट कंज्यूम कर रही थी वो 44 कर रही थी, अपनी रेटेड से थोड़ा सा ज्यादा। दैट नॉर्मली ये आपके पास कैलकुलेशन में आएंगे, ये चीज है जब आप ऑडिट करेंगे। द एनुअल डिमांड चार्ज इज देन, डिमांड चार्जेस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपके पास पर मंथ का बिल था, ठीक है, पर किलोवाट की जो, और मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स पर ईयर, ठीक है। सो उससे आपके पास डिमांड चार्ज आ गई, कैलकुलेट किया, नॉर्मली आपके बिल पे कैलकुलेटेड भी होता है। और एनर्जी चार्ज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप पूरे साल के आवर्स पर ईयर मल्टीप्लाई करने के बाद और मल्टीप्लाई बाय द रेट पर यूनिट जो आपका बनता है, तो उससे आपके पास एनर्जी चार्जेस इन रुपीस आ जाए। सो यू कैन सी द टोटल कॉस्ट इज, जो आपने इनिशियल कॉस्ट इन्वेस्ट की प्लस जो आपके पास एनर्जी कॉस्ट आई, ठीक है, इन दोनों को जब आपने प्लस किया, here we go, is the demand charge PTR प्लस द एनर्जी कॉस्ट, इन दोनों को प्लस करने से आपके पास टोटल आया तकरीबन अराउंड 5 lakhs, सपोज 50 lakhs। सो अगर आपके पास 50 lakhs यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, और आपकी तकरीबन कोई 3 lakhs ही इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, तो इट्स मीन दैट के आपकी परचेज कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू द सेविंग, ठीक है। सो इट्स मोर देन, the savings is 15 times more than the initial cost. So why not you should go for the investment in efficient electric motors. Sir, do we have 5 to 10 minutes, please? सॉरी मैम, दोबारा बोलिएगा। इधम आप कुछ कह रही हैं? आई थिंक इधम की इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, तो वो रिज्वाइन करती हैं, तो हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। इन द मीनवाइल काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि ये स्लाइड्स अवेलेबल होंगी, आप ये स्लाइड्स कल डाउनलोड कर सकते हैं। एनर्जी डेस्क का जो पेज है उसके डाउनलोड सेक्शन के अंदर ये स्लाइड्स अवेलेबल होंगी, तो आप में से जो भी लेना चाहे वो कल वहां से डाउनलोड कर सकता है।